a pipeline or any other quantity. Is whether or not का means it only revolves around all of this, इसी तरीके की चीजों में, या फिर चाहे वो वायर केबल पाइपलाइन कॉन्टेक्ट से हो या नहीं हो, या ऐसी चीजों से हो या नहीं हो, it doesn't matter. Okay, now this needs to be tested further. My humble understanding or my reading of this says that even if there is a contract, one specific contract जिसके तहत चाहे recurrent supplies होनी है, goods ऐसे हैं चाहे वो हो सकता है they might have to be moved in a truck or maybe in a vessel or otherwise, और चाहे उसमें वायर केबल पाइपलाइन अदर क्वांटिटी का लेना देना हो नहीं हो, चाहे वो लिक्विड हो नहीं हो, डजंट मैटर. In all those cases still the provision of continuous supply of goods may be made applicable, और इसका टाइम ऑफ सप्लाई उसके हिसाब से डिसाइड होगा. Now this has to be tested further. Obviously factual understanding क्या है, परचेज ऑर्डर किस तरीके से बना है, क्या वो सिर्फ रेट पीओ है या वो रेट पीओ के साथ में क्वांटिटी भी कंफर्म करता है. All of these factors will be relevant to say whether it was under a contract or not. But yes, there is one mechanism on the basis of which the time of supply may be planned in case of supply of goods also. Goods which are sent on approval basis, the understanding is clear. जैसे मैंने बताया कि माल बिकना है बट जिस समय जा रहा है तब पता नहीं है कि ये बिकने के लिए जा रहा है और इट में कम बैक, देन इन दैट केस देयर इज अ विंडो ऑफ 6 months व्हिच हैज बीन गिवन. हम चाहें तो जब पहला मूवमेंट कर रहे हैं वी मे डू दैट ऑन अ डिलीवरी चालान, एंड विद इन 6 months if the customer says that yes I confirm the order, then I may raise the invoice. If he says no, he doesn't want to confirm the order, then I have to ensure that I get the goods back within 6 months. But अगर 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं होता है and this planning is failed, then in that case there would be liability to pay tax on the original date जिस दिन goods remove करे थे. Okay, and in that case there would be requirement to basically pay interest in this regard. Now the point is, एक सवाल उठता है which is a very interesting question कि क्या ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल होगा अगर हम कोई ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं. देयर इज अ ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स व्हिच इज हैपनिंग, एंड व्हेन आई एम डूइंग दोस ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स, कैन आई टेक दिस प्ली बाय सेइंग दैट मैं मेरी ब्रांच को माल दे रहा हूं एंड आई एम गिविंग इट ऑन अप्रूवल बेसिस. In 6 months, my branch, which is in another state, which is my distinct person, it may confirm to me that कि उनको माल रखना है अपने पास में या नहीं रखना है. And if they do not confirm to me within 6 months, then either I'll bring back my goods within 6 months, or what I will do is I will otherwise make an invoice at the end of 6 months. Okay. My understanding says that these provisions cannot be made applicable on a branch transfer. These provisions would be applicable only when there are two separate legal persons. मतलब अपनी एक ब्रांच जो भोपाल में है और दूसरी ब्रांच अगर जयपुर में है, तो भोपाल वाली ब्रांच जयपुर वाली ब्रांच को गुड्स का मूवमेंट या ट्रांसफर नहीं कर सकती ऑन अप्रूवल बेसिस, एंड इट कैन नॉट टेक अ प्ली बाय सेइंग कि हम 6 महीने तक इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करेंगे. Why am I saying this? Because when you read the provision is quite clear. It says where the goods being sent or taken on approval or sale or return or on similar terms. So you just sent or taken on approval or sale or return or similar terms, they're all together. It's one single sentence without any comma. That means either I will take it, or I am taking the goods for the purpose of either it will be sold to me, or I will return it back to you, or any of these terms like this. Okay. Now all of us understand कि whenever we are sending our goods to the branch, that is taxable under GST, because though both of us are distinct person, but still we are not selling the goods, because ultimately under the Indian Contract Act हम अपने एक ही legal person अपने ही आपको goods sell नहीं कर सकता. It is only for the fiction of GST that they are treated as two distinct person, and because they are distinct person, ट्रांसफर के ऊपर जो कि जीएसटी लगता है, so because there is a transfer of goods happening from one distinct person to another. Now whenever there is a transfer happening, that transfer cannot be in a manner to say that I'm taking this transfer, whether I will keep it or not, that I don't know. Transfer has happened means the transfer has happened. If I want to give it back, I'll give it back to you, but that will be a subsequent transfer which will happen between the distinct person. That is why, to my understanding, in case of distinct person, this provision of goods sent on approval basis, it cannot be made applicable.
Now there are some circulars in this regard जहाँ पे टाइम सप्लाई के प्रोविजंस को या कब आपको इनवॉइस बनाना है उन प्रोविजंस को थोड़ा ट्वीक करा है या फिर क्लैरिफाई कर रखा है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट पेंटिंग्स को एक गैलरी पे लेके जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, एट द टाइम इट इज सेंडिंग इन टू द आर्ट गैलरी, he himself doesn't know whether his artwork would be sold or not, and then in that cases he may sell this goods on approval basis. Similarly in case of jewelry, which is a very typical example, all those who are brokers जो अपने साथ अपने जेब में या अपने हैंडबैग में ज्वेलरी कैरी करते हैं to show it to the customer, in that case they don't know whether customer is going to buy it or not, and then in that case they may take the goods on delivery challan, and the time of supply provision would not be triggered in that case. Similarly, we have the circular number 38 for in respect of transaction between principal and a job worker, where all of us know that under section 143 there is a procedure which has been prescribed where a principal may send goods to the job worker, maybe inputs and capital goods, for the purpose of working on the input, और उसके ऊपर processing करके that job worker has to give back the inputs and he may use the capital goods which the principal is giving. वहां पर जो timelines है 1 साल और 3 साल वाली, the circular says that if it is breached, in that case it will be assumed as if the goods have been basically given to the job worker by the principal on the first day only, जिस दिन उसने actually पहली बार job work के लिए inputs को या capital goods को move कराया था. तो अगर capital goods 3 साल में वापस नहीं आ रहे या फिर inputs अगर 1 साल में वापस नहीं आ रहे हैं, then in that case it will be a case where it shall be deemed as if that transfer happened or that supply had happened, and the time of supply would be the date on which the original transfer had taken place. Now friends, in this context it becomes very important that we understand, हमें ये provision तो पता है but ये practically implement कैसे होगा, ये specifically in case of a principal and a job worker through ITC 04. And many of us still we are reluctant to file ITC 04, which is a declaration which needs to be filed on quarterly basis, जहां पे हम ये understand कर रहे हैं कि वो फॉर्म बड़ा complicated है, नहीं भी भरेंगे तो क्या होगा, इसकी कोई लेट फीस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, am I really required to file ITC 4 or not? The problem is when you read 143 का प्रोसीजर ये कहता है it is subject to the intimation which you give to your proper officer. और ये जो इंटीमेशन है, ये इंटीमेशन क्या है, वो ITC 04 इंटीमेशन है, where that intimation is saying कि मैंने ये फलानी तारीख को गुड्स दिए हैं and in this date I am getting it back. So in all those cases where we are not filing ITC 04, हम दो वायलेशन है जो कर रहे हैं. 143 का वायलेशन कर रहे हैं प्रोसीजर का, टू विच अगेंस्ट डिपार्टमेंट में से कि आपने एज ए प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को जो गुड्स दिए थे बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर, वी वुड लाइक टू ट्रीट इट एज अ सप्लाई. ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा वीक है जिसका रिबटल आराम से दिया जा सकता है, पर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आएगा डिपार्टमेंट की साइड से, आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट टू से दैट बिकॉज यू डिड नॉट प्री इंटिमेटेड टू अस, जैसा 143 में लिखा है, then in that case we have no other manner to understand that at what time goods were sent and what date you received the goods back, and hence on that basis we understand that they were not received within 1 year, and now the onus is on the assessee. अब assessee के ऊपर onus है कि वो इस चीज को prove करे, और वहां पर maybe the delivery challan, the bill of entries, confirmation from the job worker, all these things would come quite handy. But yes, it will be a case which needs to be argued properly up till higher forum. नीचे के forum में उन cases में relief मिलना difficult है. That is why it is important that we file ITC 04 on regular basis and on proper basis. I think I made a mistake and I'm realizing it while speaking that जब मैं आपको सेल ऑन अप्रूवल के प्रोविजन बता रहा था तो वहां पर 6 महीना खत्म होते ही टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी ट्रिगर्ड इन नॉर्मल केसेस, ओनली इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर एंड अ जॉब वर्कर, or sorry, in case of principal and a job worker, this time of supply would go back to the original date when goods were sent by the principal to the job worker. So please pardon me for this a small correction. Now we come to the provisions of time of supply for services, and the time of supply for services provisions, they are little different and they have to be different. उनको अलग होना जरूरी है, अलग होना इसलिए जरूरी है because goods are tangible. Goods के केस में जो एक चीज है जो आप अच्छे से आइडेंटिफाई हमेशा कर सकते हैं, that is where is the movement happening, who is basically taking it, at what time the agreement was entered, at what time एक जने से दूसरे जने के पास में goods transfer हुए थे. In case of services, because they are intangible, it is only an experience. Servicing, it is purely an experience. Whatever I am speaking and whatever you are hearing,
I don't know at this point of time that whatever I am speaking, whether you are able to take it the way I am trying to speak, or I don't know that whether I'm able to deliver the manner in which you want to take it. But yes, at the end of it, the feedback will tell whether that experience was proper or not. In a similar manner, if let's say this could have been a taxable service, if let's say it had all the ingredients of supply, the problem is at what point of time I will say that service was supplied. जब ये शुरू हुआ तब, जब मुझे कांटेक्ट किया गया तब, जब मैंने डिलीवर करा खत्म करा तब, जब मैंने सवाल का जवाब दिया तब, या फिर जब मुझे फीडबैक मिला तब, या फिर जब मैंने प्रेजेंटेशन शेयर करा तब. All these things, it is subjective. None of us are aware. None of us basically can give a conclusive answer, because all of this is factual. It will come on the basis of how do we have agreed. If at all we have agreed that this is a service which needs to be supplied, and we have understood what is that completion, what is that particular point of time where we will say the service has been completed, और हम दोनों एक दूसरे को acknowledge कैसे करेंगे कि ये service का completion हुआ है. And that is why, because ये चीज instantly possible नहीं है. Let's say, according to me, I have completed it, and let's say you will say that you will go back, you will recheck whatever I am saying, and if whatever I have said that is proper, then only you will say that yes, I delivered the service in a satisfactory manner. Because it is not possible that always it will be instantly. That is why provision of 13(2) gives us additional time. वो हमें कुछ additional time देता है. Normal services के केस में 30 days from the date of basically that from the provision of completion of the service, or in case of banking, NBFCs, financial institution, insurance company, this provision it is 45 days but not 30 days. बट अगेन यहाँ पर भी तीन चीजें हैं कि हम इनवॉइस कब इशू कर रहे हैं, हमें कब इनवॉइस इशू करना था, और हमें पैसा कब मिला है. If I've issued the invoice, then the actual date. If I have not issued the invoice, then what is the due date for issuing the invoice? That is 30 days from the date of completion of the service. And if that not, then the receipt of payment, whichever is earlier. और अगर ये सारे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, then the date on which the recipient basically shows the receipt of service in his books of accounts, that will be the fourth date. तो चौथा वाला, to my understanding, it will always be, or in majority of cases will be invoked by the department. यहाँ पे डिपार्टमेंट उसको इन्वोक करेगा, बट पहले वाले दो हैं where we have to basically point this from our perspective. Okay. Mind you friends, all of us know in case of services, advances are taxable, but that does not mean कि हमको advance receive हो रहा है तो हमें invoice बनाने की जरूरत है. अगर हमें advance receive हो रहा है, then in that case we have to prepare a receipt voucher, but not the tax invoice in that particular case. और हम सब जानते हैं कि जब हम receipt voucher बनाते हैं तो हमें GSTR 1 में उसको एक अलग तरीके से दिखाना होता है, और जब हम उसका subsequently invoice बनाते हैं तो उस receipt voucher का adjustment करने की हमको जरूरत पड़ती है. Now the question which comes up, जिसके बारे में मैं भी discuss कर रहा था, what is the date of completion of a service? And this issue will crop up again and again before you in terms of services. Best example is your 31st of March 2021 financial statements. In case of a service provider, specifically a big contractor, आपका client एक works contractor है, government contractor है, sub contractor है, कोई construction company है, and all those things. Or maybe you follow this procedure where you have this concept of unbilled revenue. आप एक unbilled revenue के नाम से provision डाल दे अपनी books of accounts के अंदर as per the accounting standards, और आपने 31st March को एक unbilled revenue का provision डाल रखा है. Now according to department, अगर आप 31st March को unbilled revenue का provision डाल रहे हैं, the law is quite clear. Section 13 के provision उनके हिसाब से तो बड़े clear है कि आपको 30 अप्रैल के पहले invoice raise करना है, जबकि हम सब जानते हैं that's not the factual condition, that's not the factual case. अनबिल्ड रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है कि सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने बिलिंग नहीं करी है. अनबिल्ड रेवेन्यू का मतलब ये है कि मेरी तरफ से इतनी एक्टिविटीज है सर्विस के तौर पे जो मेरी तरफ से मैं परफॉर्म कर चुका हूं, एंड आई अंडरस्टैंड ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल एंड मैचिंग, इस साल जो मैंने खर्चे करे उसके अगेंस्ट में ये इनकम है जो अक्रू होती है और मैचिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल. बट ये चीज रेवेन्यू को समझाना मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज डिफिकल्ट. सर्विस टैक्स रिजीम में सेम सवाल उठा था 2011 के अंदर, जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के प्रोविजंस आए थे, तब एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 144, एंड दैट सर्कुलर क्लियरली लेड डाउन, एंड इफ यू रीड लास्ट 4 लाइंस, दोस लास्ट 4 लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज द टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन वेदर अ सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड would be the completion of all the related activities that place the service provider in a situation to able to issue an invoice.
However, such activities do not include flimsy or irrelevant grounds for delay in issuance of invoice. So when they say all those activities which have been done which place the supplier in a position to raise the invoice, तो अगर कंडीशन ऐसी है कि मैं जब काम कर दूंगा तो उस काम को आप कंफर्म करेंगे और आप जब कंफर्म करेंगे उसके बाद ही मैं इनवॉइस रेज कर सकता हूं और ये आपके मेरे बीच में अगर अग्री हुआ है, देन इन दैट केस it cannot be said that my service has been complete just because I have performed all the activities. Till the time you will not do the quality check, till the time you will not give approval, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में जिसको हम कहते हैं जब तक एमपी नहीं आएगा या जब तक वो रनिंग बिल इशू करने के लिए कंफर्म नहीं करेंगे, टिल दैट टाइम आई कैन नॉट से दैट माय सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड. And I think this is an important factor which all of us have to understand that why in this context at least जो हमारा accounting standards है, जो हमारा AS7 है और हमारा चाहे वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हो, नॉर्मल सर्विस के केस में हो, और हमारे जो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सर्विसेज के है वो थोड़ा सिंक में नहीं है, दे आर लिटिल डिफरेंट एंड दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस एंड सेम इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी एक्सप्लेन इट टू द रेवेन्यू अकॉर्डिंगली. Now, all of us understand that barter transactions are also taxable under GST. And you take a typical example of barter where I want to give you some service and in return you will give me some goods. बार्टर के अंदर जो इनबिल्ट एक उसका अंडरलाइन फीचर है वो ये है, बार्टर के अंदर none of us agree to a specific value. And typically it happens in case of a newspaper advertisement where a newspaper would tell that, okay, I'll print your advertisement in my newspaper for over the period of next 3 days or 4 days or whatever it is, subject to the case that you will give me certain goods or certain services which you perform. तो because उसकी monetary value advertisement की ज्यादा होगी, which the other party does not want to pay, but उसके पास में भी कोई एक valuable चीज होगी which the newspaper wants to take, and that is how both of them agree to something. In that case, it becomes important जब barter transaction है, हम ये identify करें कि दोनों का जो time of supply के provisions है, क्योंकि ये दोनों counter supplies एक दूसरे को. One, there is a supply of service from the newspaper to the advertiser, and second, there is a supply of service from the advertiser, maybe supply of goods or supply of service depending upon वो क्या देता है. जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सामने उसके अंदर वो 1000 हैम्पर दे रहा है, तो हैम्पर्स आर बेसिकली गुड्स, तो वो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 से गवर्न होंगे और इसके जो टाइम ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजन सर्विस के वो सेक्शन 13 से गवर्न होंगे. नाउ अगर लेट्स से न्यूज़पेपर को 1000 हैम्पर मिल गए हैं और उसने जो एडवर्टाइजमेंट छापा है लेट्स से वो अगले महीने में छापा है, देन इन दिस केस द न्यूज़पेपर वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स बिकॉज दे हैव रिसीव्ड द एडवांस. सामने वाला जिसने हैम्पर दिए 1000 उसको तो टैक्स पे करना ही करना है क्योंकि फ्रॉम हिज साइड द गुड्स हैव बीन रिमूव्ड और सेक्शन 12(2) के हिसाब से इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस. But newspaper को भी they have to issue a receipt voucher that they have received the advance, they have to account for it and they have to pay tax, and subsequently when they will put the advertisement in the newspaper, then they will issue the invoice और वो receipt voucher को knock off करने वाले. So this friends, we have to understand that the way transaction would change, the implementation of the provisions would change accordingly. Now we have this concept of continuous supply of service that is also very important and an interesting concept, और ये है जो majority of the times department भी invoke करता है और हम भी करते हैं whenever we are talking about a works contractor or a builder or somebody is going to supply a service over a long period of time. That is, it is said the service which is provided agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract. और आप कोशिश करिए इसको रिकलेक्ट करने की कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ में. तो जब आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ में देखते हैं तो वहां पे भी वर्ड चाहिए थे कॉन्टिन्यूसली और रिकरेंट ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, बट आगे का पार्ट जो सर्विसेज का है दैट चेंजेस कंप्लीटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली. वो कहता है फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 months, और ये टाइम लिमिट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में नहीं थी. ओके तो अगर किसी सर्विस को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बनना है तो पहला तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से ऊपर का होना चाहिए. उसके तहत किसी सर्विस को कॉन्टिन्यूस या रिकरेंट बेसिस के ऊपर देना जरूरी है. एंड द पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हिच गवर्नमेंट में नोटिफाई. और यहाँ पर पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, वहां पर पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू करने का ऑब्लिगेशन था. ओके दैट्स द डिफरेंस हियर. इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन है वो 31 के साथ चूंकि लिंक्ड है. सो 31 सबसेक्शन 5 it talks about 3 particular scenarios कि इन केसेस के अंदर आपको इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट कब है, where is that point of time when you will raise the invoice. यहाँ पर it talks about 3 specific situations.
वन इज, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के बारे में बताता है कि लेट्स से 15 हर क्वार्टर की अगले 15 तारीख को यू वुड बी बेसिकली एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, देन इररिस्पेक्टिव आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना काम करा है कितना काम नहीं करा है, इट विल हार्डली मैटर, यू विल बी रिक्वायर्ड टू रेज इनवॉइस ऑन द 15th एंड देन अकॉर्डिंगली योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ट्रिगर्ड। सेकेंड इज, अगर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन आपको एक्चुअली में पैसा मिलता है, सो व्हेनेवर दैट एक्चुअल अमाउंट इज रिसीव्ड यू वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट, दैट इज इट बिकम्स प्योरली अ लायबिलिटी ऑन द पेमेंट बेसिस। आपने इनवॉइस कब करना है, जिस दिन पैसा आ रहा है उस दिन आपको इनवॉइस करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। थर्ड इज वेयर पेमेंट इज लिंक्ड विद द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। टेक एन एग्जांपल वेयर कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि पहला छत डालोगे, दूसरा डालोगे, तीसरा डालोगे, चौथा डालोगे, और हर छत डालने के ऊपर आपको 10-10, 15-15% पेमेंट मिलेगा, एज द केस में बी, देन इन दैट केस इट फॉल्स इन द थर्ड कैटेगरी। अब ये जो सीक्वेंस में लॉ में लिखा हुआ है, सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है 31.5 का। 31.5 A B C ऐसे ही लिखे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रैक्टिकली इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप पहले 31.5 A पढ़े, फिर 31.5 C पढ़े, और अगर आपका केस 31.5 A और 31.5 C में फॉल नहीं करता है, then in that case the case would fall on 31.5 B. That would be the correct way of interpreting it, that would be the correct way of approaching it, otherwise somebody may have a weird and an absurd result. But friends, it is important to understand these provisions are only applicable when there is a continuous supply of service. Now take an example which we faced recently where let's say government ने मुझे काम दिया है और गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि पूरे राजस्थान के अंदर वर्चुअल क्लासरूम बनाने हैं, और वर्चुअल क्लासरूम बनाने के लिए मटेरियल भी मुझे लगाना है, इंस्टॉलेशन भी मुझे करना है, एवरीथिंग आई हैव टू प्रिपेयर, बट स्मार्ट क्लासरूम तैयार होने चाहिए, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ ह्यूज अमाउंट दैट इज रेंजिंग ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब जब उसके टाइम ऑफ सप्लाई की बात करी जाती है तो सरकार ने तो फिक्स कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की लमसम वैल्यू है लेट्स से 10 CR, 20 CR, 30 CR, व्हाटएवर इज द केस। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि इसके ऊपर कौन सा प्रोविजन लगेगा, we have to go back to the basics and see whether it is a continuous supply of goods or a continuous supply of service. It prima facie जब आप contract ऐसे देखेंगे you have to see whether it is a works contract or not. अगर ये works contract है then it will become a supply of service क्योंकि इसके अंदर material involvement होगा और supply involvement होगा, और works contract होने के लिए हम जानते हैं सिर्फ material और service essential नहीं है, it should be a contract for immovable property। तो सवाल ये होगा कि वो जो वर्चुअल क्लासरूम बनेगा whether that will be an immovable property or not or that will be in addition to the immovable property or not, वो फैक्ट जब क्लियर होगा तब हम जाके देखेंगे हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस लगाना है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चाहे उसको सर्विस लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में माइलस्टोन डिसाइड कर रखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट डिसाइड कर रखी हो, all of that will not matter until and unless first of all we agree as per the provision of the act it is a service or a goods. So hence friends, the purpose of giving this example was गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जनरली जिस तरीके से टर्म्स लिखी होती है दे आर ऑलवेज एज पर सेक्शन 31.5, बट इन जीएसटी वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू 31.5 जस्ट बिकॉज एक प्रोविजन है जो लिखा हुआ है, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस इज एनीथिंग अदर देन गुड्स, एंड देन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अग्री एंड वी हैव टू सब्सटैंशिएट कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रांजेक्शन की हम बात करें इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, then we come to provision for time of supply of under RCM. I'll quickly take this and then we'll go to provisions for a place of supply. Time of supply under RCM, हम सब जानते हैं RCM के अंदर tax is required to be paid by the recipient. When you will look at and as of now बहुत चुनिंदा products ऐसे हैं जिसके ऊपर RCM under reverse charge you are required to pay on supply of goods. Otherwise, in majority of the cases, in fact, except very few items, cashew, betel nuts, and all those things, all other cases we are required to pay tax as supply on supply of services under section 9394 और CGST का नोटिफिकेशन नंबर 13 है जिसके अंदर सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर रखा है। टैक्स रिसिपिएंट को कब पे करना है उसके लिए ईदर ऑफ द 4 कंडीशंस है, जो पहले हो जाए उसके हिसाब से यू वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। तो क्या है वो, अगर गुड्स का आरसीएम है तो आपको किस दिन गुड्स रिसीव हुए हैं ये कंडीशन आपको देखनी है। सर्विसेज के केस में ये देखने की जरूरत नहीं है कि सर्विस रिसिपिएंट को सर्विस कब रिसीव हुई है। सेकेंड केस, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, जिस दिन पैसा या तो बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया है, जिस दिन किताबों में रिसिपिएंट ने बोला कि मुझे इस फलानी सप्लायर को पेमेंट करना है वो तारीख, या फिर अगर गुड्स के केस में पे करना है तो सामने वाले ने अगर इनवॉइस रेज करा है सप्लायर और गुड्स ने जिसको टैक्स नहीं पे करना है और मुझे उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है,
तो 31st डे ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय हिम, और इन केस ऑफ सर्विसेज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सर्विस सप्लायर। और अगर ये तीनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, मतलब चौथे पे तभी जाना है जब ये तीनों आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर तीनों ही पॉसिबल नहीं है, देन द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, जिस दिन रिसिपिएंट अपनी किताबों में एंट्री कर रहा है, दैट इज द डे ऑन विच द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस वुड बी ट्रिगर्ड। ओके, नाउ आई विल गिव यू अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वेयर ऐसा लगता है चौथा वाला केस ज्यादा काम का नहीं है, मेजॉरिटी केसेस या तो सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन में फॉल कर जाएंगे, बट यू टेक फोर्थ केस वेयर लेट्स से डायरेक्टर के केस में somebody has taken a call by saying डायरेक्टर ने कंपनी को कोई पर्सनल गारंटी दे रखी किसी लोन के अंदर, एंड लेट्स से जो उसने पर्सनल गारंटी दे रखी है उसके ऊपर आपने तय करा है कि उसके इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी ऑन व्हिच कंपनी वुड पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। Now, typically what happens is directors do not charge anything for that personal guarantee which they give. They don't charge any commission. कई बार तो सैंक्शन लेटर में लिखा होता है आप कमीशन चार्ज नहीं कर सकते, एंड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर द होम ग्रोन कंपनीज, दे आर प्रमोटर बेस्ड कंपनीज, एंड दो प्रमोटर डायरेक्टर्स बोथ आर सेम, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट चार्ज एनी कमीशन एट ऑल. But the commission is not, the guarantee is not given in the capacity of a promoter. The guarantee is given in the capacity of a director. That's what the sanction letter says. अब इस केस पे मान लीजिए डिपार्टमेंट सेज दैट यू हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज मुझे वो रिवर्स चार्ज का टैक्स कब पे करने की जरूरत है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम. पहला वाला पार्ट लगेगा नहीं इसमें, सेकंड वाला लगेगा नहीं क्योंकि पेमेंट कुछ होने वाला नहीं है, थर्ड वाला इसलिए नहीं लग रहा है इस केस में क्योंकि डायरेक्टर कोई इनवॉइस बनाने वाला नहीं है. ही इज नॉट गोइंग टू सेंड एनी इनवॉइस टू यू बिकॉज़ ही डज नॉट वांट टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू. देन द फोर्थ केस वुड बी एप्लीकेबल कि किस दिन आप उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब सवाल ये उठेगा आप ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पे एनी कमीशन टू द डायरेक्टर. ओके, now when you are not going to pay any commission to the director, then in that, when you are not going to pay any commission to the director, then in that case the only thing which you will record in your books of accounts is the tax amount जो अपना टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करने वाले हैं. एंड हेंस अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई डायरेक्टर को मैंने किसी तरीके का गारंटी कमीशन दिया है जो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, या मैंने गारंटी कमीशन नहीं दिया है, बट बिकॉज बोथ ऑफ अस आर रिलेटेड पार्टीज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और रिलेटेड पार्टी के बीच का अगर कोई ट्रांजैक्शन है विच इज विदाउट कंसिडरेशन, ये वो शेड्यूल 1 की एंट्री 2 में जाके कवर हो जाता है. और चूंकि शेड्यूल 1 की एंट्री 2 में जाके कवर हो जाता है, इट बिकम्स अ डीम सप्लाई. उस डीम सप्लाई के ऊपर अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(3) और 13(3) अकॉर्डिंग टू दैट, जिस दिन मैं टैक्स की एंट्री मेरी किताबों में कर रहा हूं, चाहे मैं 1 साल के एंड में करूं, 2 साल के एंड में करूं, या 3 साल बाद जाके मैं करूं, दैट विल बी द डेट ऑन विच आई वुड बी बेसिकली रिक्वायर्ड टू पे टैक्स. The time of supply of provision, the time of supply of service provision would be triggered on that date only. और अगर आज 17-18 का भी टैक्स अगर मैं आज पे कर रहा हूँ, in my humble understanding there is no requirement to pay any interest in that regard. आपको टाइम ऑफ सप्लाई आज की डेट पे जाके ट्रिगर होता है. So again that it becomes a tool for planning where आपको ये चीज का डर है या there is that apprehension कि क्या ये डीम सप्लाई में कवर होता है नहीं होता है, क्या हमें इसका रिवर्स चार्ज का क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हम आज पे करेंगे तो क्या सरकार हमसे 3 साल का ब्याज लेगी या नहीं लेगी. Maybe we can look the transaction from a different perspective, ensure and see whether can I ensure and look at time of supply provision, pay tax today, record the transaction books of account today, raise a reverse charge invoice or a purchase invoice today, and then take credit of it without paying any extra amount of any interest or penalty to the government. So that way this provision can be used. Last is voucher. Voucher in time of supply, very interesting thing. हम सब लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये वाउचर क्या बला है, क्या चीज होती है, बट ऑल ऑफ अस एंजॉय वाउचर्स व्हेन वी गेट इट. यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, यू वेंट टू शॉपर स्टॉप और एनी अदर मॉल, रिटेल मॉल, उन्होंने आपको बोला इतने खरीदने पे वाउचर है, अगली बार वाउचर लेके आइए और इस वाउचर को रिडीम कराइए, एंड यू वुड बी रिक्वायर्ड, यू वुड बी अलाउड अ डिस्काउंट, या फिर आपको इतने रुपए का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. पहला सवाल ये उठता है कि वाउचर क्या होता है, वाउचर गुड्स होता है, वाउचर सर्विस होता है, या ये किस बारे में बात कर रहे हैं. तब हम टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस तो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस वाउचर व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. उसके लिए देयर इज अ डेफिनेशन इन दिस एक्ट अंडर 2 सब 118 व्हिच हैज बीन गिवन, एंड द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. मतलब ये बहुत सारे डाउट्स को डेफिनेशन क्लियर करती है. इट सेज voucher means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration
or part consideration for supply of goods or service of both, and where goods or service of both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related document, including the terms and conditions for use of the instrument. तो आगे वाली पार्ट ठीक है सारी कि उसके पता होना चाहिए किसके पास जा रहा है, क्या माल और गुड्स इससे जाने वाला है, एंड ऑल दोस थिंग, दैट इज द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉ क्लियरली सेज कि इस कानून में जो वाउचर की हम बात कर रहे हैं, voucher is nothing else but it is an instrument which has to be accepted as the part of the consideration. तो ये एक तरीके से कंसिडरेशन का पार्ट है. वाउचर अपने आप के अंदर वाउचर इशू करना, इट कैन नॉट बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स और इट कैन नॉट बी सप्लाई ऑफ सर्विस. बट अगर माल सप्लाई कर रहे हैं कि अगेंस्ट में मैंने वाउचर दिया है, तो मैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 पढ़ूंगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए. और अगर मैंने कोई सर्विस देने के अगेंस्ट में वाउचर दिया है, तो मैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 पढ़ूंगा सर्विस के अगेंस्ट में. तो वो अंडरलाइन सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है, वो इंपॉर्टेंट है. वो वाउचर ना अपने आप में गुड्स है, ना वाउचर अपने आप में सर्विस है. द ओनली प्रॉब्लम विच अराइजेस इज, लेट्स से वेयर यू आर ए बिग आइसक्रीम कंपनी और आप अपनी आइसक्रीम बेचने के साथ में लोगों को वाउचर देते हैं. लेट्स से मैं आया बीच में, मैंने बोला मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आके मुझसे वाउचर खरीदते हैं, और आपने अभी आईपीएल चल रहा है इन द इवनिंग, इफ सम ऑफ यू वुड हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ एड्स व्हिच लाइक दिस ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर सेइंग यू हैव दिस कॉइन, यू हैव दैट कॉइन, यू टेक दैट कॉइन, यू रिडीम इट हियर एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ क्वेश्चन व्हिच कम्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये जो बीच में इंटरमीडियरीज हैं जो कहते हैं आप हमें वाउचर दे दो और हम आगे जाके कस्टमर को वाउचर देंगे, ये जो वाउचर का सेल परचेज कर रहे हैं, क्या ये अपने आप में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है? वहां पर जाके फैक्चुअल सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, where you have to see whether it is an actionable claim, whether actually it is a goods, whether it is a service or anything of that sort. But at least जो पहला इंसान, वो जो आइसक्रीम कंपनी है, वो कभी वाउचर सेल नहीं कर रही है, वो आइसक्रीम बेचने के लिए अपना कंसिडरेशन का एक तरीका है जो ले रही है, और उसके लिए there are this provision of section 12(4) or 13(4). So to that extent we have to read the provision. रेजिडुअरी प्रोविजन कहते हैं कि अगर आपको किसी भी और तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा, ऑल प्रोविजंस आर फेलिंग, देन इन दैट केस अगर आपको पता है सप्लाई कौन से टैक्स पीरियड की है और वो पीरियोडिक रिटर्न में जानी चाहिए थी, तो पीरियोडिक रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है. और अगर सप्लाई के बारे में वो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, तो जिस दिन टैक्स का पेमेंट किया जा रहा है, दैट बिकम्स अ टाइम ऑफ सप्लाई. Again, these are residuary provisions. It can be invoked either by the department or by the assessee when हम ये ओनर्स डिस्चार्ज कर दे कि बाकी सब प्रोविजन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो हम जाके सीधा 12(5) और 13(5) में नहीं बोल सकते कि देखो यहाँ पे ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न लिख रखा है. What we can do is we have to go back and we have to tell basically कि ये प्रोविजन तो तभी लगेंगे जब 12(1), 2, 3, 4 या 13(1), 2, 3, 4 एप्लीकेबल नहीं है, और उसका जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा. दिस इज दैट लास्ट पॉइंट इन टाइम ऑफ सप्लाई जो कहता है कि 12(6) और 13(6) उन चीजों के बारे में बात करता है जहां पर हमने कोई माल सप्लाई करा, सर्विस दिया, हमको पैसा लेना था हमारे कस्टमर से, कस्टमर ने डिलेड पेमेंट करा या उसने पेमेंट नहीं करा या टर्म्स के हिसाब से नहीं करा, और उसी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ पैसा रिकवर कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम से रिकवर करे, लेट फीस के नाम से रिकवर करे, पेनल्टी के नाम से रिकवर करे, देन इन दैट केस हमें पता है सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन का सेक्शन है वो कहता है कि जो भी पैसा एडिशनली रिकवर करा जाता है ये अपने आप में कोई सप्लाई नहीं है. Do not confuse this with as a supply of tolerating an act, to do an act and all those things. It is nothing of that sort. अगर आपका माल 5% का है, तो ये जो एडिशनली पैसा लिया है उस माल का लेट पेमेंट करने के लिए, उसके ऊपर भी रेट 5% की लगने वाली है, और इस माल की सप्लाई का ही पार्ट है वो. तो 12(6) पढ़ेंगे आप अगर माल की सप्लाई के अगेंस्ट में किसी ने लेट पेमेंट करा और आप उससे इंटरेस्ट से लेट फीस चार्ज कर रहे हैं, और अगर किसी ने सर्विस सप्लाई के अगेंस्ट में ये लेट फीस, इंटरेस्ट, डैमेजेस का कुछ पैसा चार्ज करा है, then it becomes part of 13(6). इसके लिए for this we have to raise a debit note on which you have to reflect the tax, और इसका time of supply basically it comes up only when basically you are receiving the amount, not at the time where you are actually receiving the document. तो चाहे आपने डेबिट नोट रेज कर दिया हो आज से 2 महीने पहले, but if you are receiving the amount today, your time of supply comes today only, and when your time of supply comes today only, you are not required to pay interest for the 2 months, चाहे आपका जो डेबिट नोट का डेट है वो 2 महीने पहले का डेट हो. So these are provisions for time of supply which are applicable in respect of time of supply of goods and time of supply of services. We have this section 14 वो कहता है what will happen if there is a change in rate of tax.
और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने जो शुरुआत में बात करी थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था मथुरम दास अग्रवाल, वो जजमेंट ये कहता है कि रेट ऑफ टैक्स हैज टू बी वेरी क्लियर। तो कभी रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गई और अगर ये सेक्शन 14 नहीं होता तो आपके पास, मेरे पास, हम दोनों के पास ये आर्ग्यूमेंट था कि अब तो लेवी फेल हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने जो मोबाइल फोन बेचा था उसके ऊपर पुरानी रेट लगेगी, नई रेट लगेगी, कौन सी रेट लगेगी, जो मेरे ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस चल रहे थे उन पे क्या होगा। सेक्शन 14 उस प्रॉब्लम को खत्म करता है। वो बोलता है ईदर ऑफ दीज थ्री, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, अगर रेट चेंज होने से कोई भी दो इवेंट पहले हो गए तो आप मान लीजिए कि पुरानी रेट लगेगी, और रेट चेंज होने के बाद में अगर मान लीजिए इन तीन में से कोई भी दो इवेंट होते हैं तो उस टाइम के ऊपर नई वाली रेट लगेगी। So, ज्यादा वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट टेबल, हम बनाए अच्छा ये पहले हो गया तो ये होगा। ईदर ऑफ दीज थ्री, आइडेंटिफाई व्हेन आर द टू इवेंट्स आउट ऑफ these three happening. If it is happening before the rate change, purani rate. If it is happening after the rate change, nayi wali rate. Very simple. We don't have to break our head on this. Now we come to the provisions of place of supply. I'll take all the questions at the end. So in case there are any questions, I would request all of you that you may put them in the chat box and I'll try to answer whatever maximum I can at the end of it, so that at least पहले हम हमारा portion पूरा कर सके. Otherwise, I don't think we'll be able to complete our part. Now we come to provisions of place of supply. और place of supply एक ऐसा provision है जो probably जिसका जो genesis है या जिसका जो हम कह सकते हैं इसका जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो पुराने लॉज के अंदर हमें इतना ज्यादा इसका प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं, बिकॉज हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। वैट लॉ बड़ा क्लियर था। वैट लॉ बोलता था कि भाई अगर सप्लाई राजस्थान से हो रही है तो चाहे इंटर स्टेट सप्लाई करो या इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, in all these cases you would be required to pay tax in today only. You will be required to pay VAT and that VAT would belong to the Rajasthan only. Whereas सेंट्रल मतलब सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के अंदर वो जरूरी नहीं था जानना कि कौन सा टैक्स लगेगा, क्योंकि दोनों टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने थे, बस हमें ये पता होना चाहिए था लेवी क्या है। Now in GST we know it is a marriage which has happened between center and state. हमने कॉमन ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों टैक्स लगा रहे हैं। जो हमारी लेवी है वो सप्लाई के ऊपर है, बट ultimately that problem of cascading or that problem of non passage of credit from one person to another उसको खत्म करना था, प्लस गवर्नमेंट का इंटरनल सेटलमेंट टैक्सेशन का कैसे उसको आइडेंटिफाई करना था, एंड उसके लिए वी हैव बोरोड अ फॉरेन कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने कई बार ये सवाल सुना होगा, मतलब इनफैक्ट 11th-12th में भी जब जीएसटी के बारे में आप बताया जाता है, या जो लोग अदरवाइज देखते हैं गूगल पे आप देखेंगे तो गूगल के ऊपर भी लिखा होगा दैट जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। माल और सर्विसेज का जहां पर कंजम्पशन हो रहा है तो कौन सी डेस्टिनेशन है, इट इज दैट टैक्स इज बेसिकली ट्राइंग टू पुट बॉर्डर ऑन दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और द पर्सन। द क्वेश्चन व्हिच कम्स अप इज इस चीज की लीगल बैकिंग कहां है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। किसी कानून में तो लिखा होना जरूरी है, तभी तो हम ये बात बोलते हैं। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी जजमेंट के अंदर, किसी सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर को छोड़ देते हैं, मे बी आई एम कोटिंग द रॉन्ग डॉक्यूमेंट, बट ऑल दोज डॉक्यूमेंट व्हिच हैव अ लीगल रेफरेंस, वहां पर अगर कहीं लिखा हुआ है देन ओनली वी कैन से इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। So conceptually GST is a destination based consumption tax, there is no doubt about it, but ये कॉन्सेप्ट हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते और ये चीज को समझना जरूरी है। मतलब हम जब प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड दैट क्वेश्चन इज कि एक बात बताइए, मेरा कस्टमर बैठा है हैदराबाद के अंदर, मैं बैठा हूं भोपाल के अंदर, तो टैक्स तो ऑब्वियसली आईजीएसटी ही लगेगा ना, मतलब दैट्स द अंडरस्टैंडिंग व्हिच वी हैव। नाउ वो हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड इट हैज बीन ऑलवेज टोल्ड टू अस कि भाई जीएसटी आया है इसीलिए क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट देना, मतलब अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम खत्म करना है क्रेडिट पास ऑन नहीं होने का, और आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट ही बना उसके लिए। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बट इट डज नॉट हैव अ लीगल वैलिडिटी कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कानून के किसी, maybe the levy provision would remain same, maybe the valuation would remain same, but what type of tax needs to be paid, to whom tax would be paid, where I would do my compliance, administrative, lot of things would change. And because all of this ultimately conceptually ऐसा है, हर स्टेट अपने आप में एक टैक्सिंग जुरिडिक्शन है सेपरेट,
तो अगर आज हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कोई निर्णय लेती है और मान लीजिए पॉलिटिकली डिफरेंसेस को अगर अलग छोड़ के एमपी में बोला जाए कि जो चीज यहाँ के वाणिज्य विभाग ने किया है या कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट ने किया है वही चीज वहां का कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट या एसजीएसटी करे, कोई जरूरी नहीं है। देयर इज नो मैंडेट, चाहे वो जीएसटी के ही संदर्भ में या जीएसटी के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं हो। And that is why each territory, each state boundary in itself is a different taxable territory. And in that context, we have to come back and see then why place of supply is essential. For a very simple fact, क्या लगेगा पहले ये जानना जरूरी है। आईजीएसटी लगेगा, सीएएस लगेगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होता तो लेवी फेल हो जाता। या तो जीएसटी होता है इंडिया में, बट बिकॉज जीएसटी नहीं है, सीएस और आई है, तो क्या लगेगा उसके पीछे का जो एसेंस है दैट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो भी इन्हीं प्रोविजंस के थ्रू तय होता है, क्योंकि इन प्रोविजन से तय होता है कि टैक्स कौन सा लगेगा और क्रेडिट कैसे फ्लो करेगा, जो एक फैसिलिटेशन मेजर है, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम हियर। बट द थर्ड पार्ट कैन नॉट ओवररूल द अदर टू। जस्ट बिकॉज क्रेडिट नहीं मिल रहा उस कारण से बाकी जो चीजें हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई को इस तरीके से पढ़ लिया जाए, दैट कैन नॉट हैपन। थर्ड पार्ट इज ऑक्सिलरी, थर्ड आप कह सकते हैं इंसिडेंटल चीज है। तीसरी को फैसिलिटेट करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन नहीं है, पहली और दूसरी को फैसिलिटेट करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है, तीसरी चीज इंसिडेंटली मेजॉरिटी चीजों के अंदर हो जाती है। और इन सब का जो आंसर है दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, आई नीड नॉट रिपीट इट, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो। पूरे वर्ल्ड ओवर आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं है जीएसटी में, हमारा सिर्फ इंडियन जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में दिस आईजीएसटी इज देयर स्पेसिफिकली, जहां पे डुअल लेवी है। जैसे कैनेडा इज दैट वन कंट्री वेयर दे हैव अ डुअल लेवी, एंड देन इन इंडिया वी हैव दिस, एंड हियर दिस कांसेप्ट हैज बीन मेड एप्लीकेबल। कांसेप्ट क्या है? कांसेप्ट इज वेरी सिंपल। गवर्नमेंट का टैक्स भी कैसे बाइफिकेट होगा वो भी ये आईजीएसटी तय करता है, एंड द प्रोविजन इन आईजीएसटी एक्ट आर वेरी क्लियर। सप्लायर है वो अपने लोकेशन पे बैठा है, रिसिपिएंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो चीजें हम देखेंगे। दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन अगर B2B का है तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स चला जाएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच का ट्रांजेक्शन है और अगर B2B ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट एज अ ट्रस्टी या फिर कॉमन पूल एज अ ट्रस्टी विल टेक दैट अमाउंट until unless it is clear that credit is a block credit, that amount will not be used by the recipient। उसको मना कर रखा है कानून में या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है। अगर नहीं है, till the time it is B2B, the government will remain a custodian. Moment it becomes a B2C transaction, that IGST gets split between central and state government as per their whatever bifurcation or the division they have to do. It is as simple as that, and that's how the whole mechanism has been built, and that's how this whole mechanism of distribution of taxes between center, state, and everything of that sort happens. तो जब तक IGST में पैसा पड़ा है, सरकार उस पैसे की ट्रस्टी है। Government is trustee of that particular money. They cannot spend it, they cannot utilize it, they should not do that. But once it converts into a B2C transaction, then governments are entitled to split it, use it as per whatever they want to do. And that is why, how are we reporting the transaction? B2B में कर रहे हैं, B2C में कर रहे हैं, क्या टैक्स लगा रहे हैं, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई लिख रहे हैं, that becomes very important. In this background, when you come to levy provision section 4, आप सबने पढ़े होंगे levy provision, and all of us know that IGST of 4 I'm talking about the IGST Act, not section 9 of CGST Act, and the 4 says it is applicable on interstate supply of goods and services. So not only supply of goods and services but interstate supplies. It has a proviso. Proviso is very interesting. In fact, for an academic understanding, it should raise a question in your mouth. In your mind. What is that question? The question is, जब आप 4 का जब सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं उसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। ओके, और जब आप ऊपर 4(1) पढ़ते हैं वो कहते हैं ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। प्रोवाइजो के अंदर एक वर्ड मिसिंग है, दैट वर्ड विच इज मिसिंग इज सप्लाई। Proviso does not say provided that integrated goods and services tax on supply of goods imported into India. It says integrated tax on goods imported into India. We know that integrated tax is not on goods. Integrated tax supply of goods. So then it looks like what is government trying to convey here कि हम जब माल को import करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो जो import के ऊपर हम IGST पे कर रहे हैं, क्या हम supply के ऊपर पे कर रहे हैं या हम import के ऊपर पे कर रहे हैं?
मतलब कोई ऐसा इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन जो सप्लाई नहीं है, जिसके अंदर सप्लाई के इंग्रेडिएंट नहीं है, क्या हम स्टिल कह सकते हैं उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा? आंसर टू दैट इज यस, इट विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज उसका जो लेवी है, उसका जो कलेक्शन है, उसका जो वैल्यूएशन है, इट इज ऑल एडमिनिस्टर्ड बाय द कस्टम्स. It is not administered under the IGST Act. The only benefit here which is applicable is ITC के प्रोविजंस में जाके हमने उसको बोला कि आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर ले सकते हैं, तो उसका कलेक्शन भी वही होगा, उसका शॉर्ट कलेक्शन है तो उसका नोटिस भी वहीं से जारी होगा. ऑफिसर विल बी दैट, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स विल बी द ऑफिसर टू एडजुडिकेट द मैटर देयर. जीएसटी ऑफिसर विल नॉट डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट द फैक्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका जो क्रेडिट लिया गया है यहाँ पे, दैट क्रेडिट इज वैलिड और नॉट. Okay, so that is one important concept to understand. So when you look at the levy, you realize कि हमको दो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है. इंटरस्टेट तब होता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में हो, और इंट्रास्टेट तब होता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई देयर इन द सेम स्टेट. टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई. Our discussion is on place of supply, but we have to understand what is basically the location of supplier. ओके, बट बिफोर अगेन वी गो देयर, जैसा हमने टाइम ऑफ सप्लाई में देखा 12 लगेगा कि 13 लगेगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, सिमिलरली प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए 10 लगेगा, 11 लगेगा, 12 लगेगा, 13 लगेगा ऑफ आईजीएसटी एक्ट. उसके पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर. आर वी डिस्कसिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और वी डिस्कसिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज? लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग एनी गुड्स टू यू, does that compulsorily mean it is a supply of goods? The answer is no. अगर वो goods मैं आपको बेच रहा हूं, it is a supply of goods. अगर मैं वो goods आपको किराए पर दे रहा हूं, it becomes a supply of service. Whole dynamics changes. आपके place of supply के provision बदल जाते हैं, आपके time of supply के provision बदल जाते हैं, your timing of lot of the other things changes. So before coming here, first identification is the classification of goods and services. Place of supply से कभी classification मत तय करिए, पहले गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन तय कर लीजिए. जब आप उस पे श्योर है तब प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में जाके वी हैव टू एंटर. नाउ व्हाट आर दोस सप्लाईज व्हिच आर इंट्रास्टेट सप्लाईज, व्हाट आर दोस सप्लाईज व्हिच आर इंट्रास्टेट सप्लाईज? फॉर दैट वी हैव प्रोविजन सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. 7 सेज whenever what are those interstate supply of goods, तो interstate supply of goods के लिए it is subject to provisions of section 10. Now again all of us as students of law we understand that अगर कोई section है, कोई provision, it is saying subject to 10, that 10 would first of all would be of relevance there. हम 10 देखेंगे और 10 में जो लिखा है उसके हिसाब से will be able to identify whether the supply of goods where the location of the supplier and place of supplier in two different states, to different union territories, or in a state and a union territory, then it will be an interstate supply. So when you're reading 7.1, while reading 7.1, and if it is a case where the location of supplier and place of supply is identified, then first of all, whether the place of supply is in another state or not, उसके लिए 10 पढ़ना है. 10 पढ़ के जब आप place of supply identify कर चुके हैं, then you come back to 7 and then ये दोनों fill in the blanks को fill करना है कि location of supplier क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 के हिसाब से क्या है. जब दोनों आइडेंटिफाई हो गए और फिर देखते हैं अगर 7.1 की किसी कंडीशन में बैठता है, दैट बिकम्स एन इंटरस्टेट सप्लाई. That is again one of the examples which I wanted to give, that how are we going to identify this. So only place of supply is not important. Place of supply, location of supplier, reading it together, identifying कि 7.1 में fall करता है क्या, तो interstate supply है, and then उसके बाद it is going to be IGST. Goods which are imported into the territory of India till they cross the custom frontier of India, it will always be interstate supply. Interstate supply है, इस कारण से IGST लग रहा है. But again जो IGST लग रहा है, कलेक्शन है, वैल्यूएशन है, all of that is through customs. इस IGST एक्ट में उसके बारे में कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखा है कि उसका कलेक्शन कैसे होगा या वैल्यूएशन कैसे होने वाला है. In case of services, just like for goods, it was subject to 10. For services, it is subject to 12. Similarly, services imported into territory of India, it will be always an interstate supply of services. And services imported into India, इसके सारे provision IGST Act के अंदर ही हैं. Import of service क्या होगा, कब मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, location of service recipient क्या होगा, location of service supplier क्या होगा, all of that is part of the IGST Act. For services, we don't have to go to any other act, but for goods, when they are importing into India, you have to go to the Customs Act. And then last 7.5, which is the residuary.
जो इस बारे में बात करता है कि आप इंटरस्टेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपने गुड्स का 10 के हिसाब से पीओएस आइडेंटिफाई कर लिया, सर्विसेज का 12 के हिसाब से पीओएस आइडेंटिफाई कर लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कर लिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कर लिया, उसके अलावा 3 तरीके के ट्रांजेक्शन और हैं जो इंटरस्टेट सप्लाई बन सकते हैं। पहला, जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, टिपिकली जिसको हम समझते हैं एक्सपोर्ट्स, एंड इट इज फॉर बोथ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, because 7.5 it is applicable on both supply of goods also and supply of services also. B, which is again an exception जो हम सब जानते हैं कि अगर SEZ आप ही के शहर के अंदर है, but if there is an SEZ special economic zone which has a whole act in itself which is comprehensively different from all other acts and it is not withstanding any other act which is applicable in India, it has that relevance, then in that case अगर किसी ने SEZ को सप्लाई करा है, चाहे वो डेवलपर हो या यूनिट हो, या SEZ ने सप्लाई करा है टू मे बी एन SEZ और नॉन SEZ, देन इट विल ऑलवेज बी एन इंटरस्टेट सप्लाई. थर्ड इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका एग्जांपल हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज दैट थर्ड, वेयर इट सेज ये सब करने के बाद में भी इफ देयर इज एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी not being an intrastate supply and not covered anywhere else in the section. मतलब आपने सब कर लिया, आपने 7, 1, 2, 3, 4, 5 का A, B पढ़ लिया, अभी सेक्शन 8 जो आगे इंट्रास्टेट का आएगा वो पढ़ लिया, आपको लग रहा है कहीं ट्रांजेक्शन नहीं जा रहा, तो ऐसा मत करिएगा कि आप बोले कि नहीं इसका तो लेवी फेल हो गया बिकॉज हम इंटर और इंटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. वो कहते हैं नहीं, देन स्टिल यू हैव 7.5C only when there is supply is in taxable territory and taxable territory is India. Section 1 जब हम पढ़ते हैं तो taxable territory की बात करते हैं कि किसके ऊपर ये provisions applicable है. So it is applicable in the territory within India. So India is a taxable territory. तो अगर supply भारत में है और ये supply intrastate provisions में कहीं पे भी cover नहीं हो रही है, then it gets covered here. Typical example, मान लीजिए एक supplier है A, वो राजस्थान में बैठा है, उसका एक कस्टमर है बी जो यूएसए में बैठा है, वो बी को बोलता है कि आई वांट टू सप्लाई गुड्स टू यू. बी सेज ओके आई वांट टू बाय गुड्स फ्रॉम यू बट डू नॉट सेंड गुड्स टू मी. मुझे यूएसए में कुछ मत भेजो, मेरी एक एंटिटी है या फिर मेरा एक कस्टमर है सी लिमिटेड एसईजेड के अंदर और आप उस एसईजेड को गुड्स डायरेक्टली डिलीवर कराओ. ओके, नाउ इन दिस केस फॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए एंड बी, ए इज सिटिंग इन इंडिया, बी इज आउटसाइड इंडिया. दिस इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में कंडीशन ये है कि गुड्स इंडिया के बाहर जाना जरूरी है. क्योंकि गुड्स इंडिया के बाहर नहीं जाना तो एक्सपोर्ट नहीं है. माल जा रहा है सी के पास में, सी जो एसईजेड है, क्या वेदर इट इज सप्लाई टू एसईजेड? द आंसर इज नो, बिकॉज सी इज नॉट द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट तो बी है, बी वो जो पेमेंट करने वाला है. So goods are not going to the recipient, but on the instruction of the recipient, goods are going to C. C is in the SEZ, and hence both of the delivery of goods is not in the same state. It is to the SEZ, and it is not covered by any of the scenarios जो law में लिखे हुए. This gets covered by 7.5C. It becomes an intrastate supply on which A will charge IGST from B Limited, which is sitting in USA, and the place of supply of it will be the SEZ. If that SEZ in the same state, if let's say वो SEZ राजस्थान के अंदर ही है, तो place of supply will be Rajasthan. I will charge IGST, but ये 7.5B का transaction नहीं है, ये 7.5C का transaction है. So that's one of the typical examples which gets covered here. I'm sure अगर आप ढूंढेंगे या फिर you look at transactions around, you'll be able to find more examples to this. जीरो रेटेड सप्लाई हम सब जानते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाईज टू एसईजेड और एसईजेड यूनिट और डेवलपर, दीज आर जीरो रेट सप्लाईज. जीरो रेट सप्लाईज का अपना एक महत्व है, एडवांटेज है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सेक्शन 8 इज इंट्रास्टेट सप्लाई, जहां पर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन सेम स्टेट, और ये एसईजेड को सप्लाईज नहीं है, एसईजेड सप्लाई नहीं कर रहे, देन इट बिकम्स एन इंट्रास्टेट सप्लाई. Thus, wherever there is an intrastate supply, CNS. Wherever there is an intrastate supply, it is IGST. Now, question: how does branch transfer gets taxable? कहाँ पे आएगा? Answer to that comes from explanation 1 to section 8 of the IGST Act. Explanation 1 ये बताता है कि इस कानून में distinct person कौन है, और वो कहता है कि अगर मेरा कोई establishment है which is outside my state, maybe within India, maybe outside India, तो वो मेरा एस्टैब्लिशमेंट चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो,
it will be treated as a distinct person. Once it becomes a distinct person, automatically provision of section 7(1) or 7(3) are made applicable. अगर वो services की supply है तो 7(3) लग जाएगा, where the location of supplier is one state and maybe place of supply in some another state, subject to जब हम place of supply के provision देखेंगे transaction wise, या फिर अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो चूंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है दूसरा स्टेट हो और मैं एक दूसरे स्टेट में बैठा हूं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एन आईजीएसटी. That is why all transactions with distinct person, they are always intrastate supplies. They can never be an intrastate supplies. They will always be an intrastate supplies, with few exceptions, which if the time permits, we'll discuss those exceptions also. Now let's jump to directly to section 10 of place of supply of goods. I'm sure आपने प्रोविजन बहुत बार पढ़ा है, आपको पता है, इसकी मैं theoretical understanding में नहीं जाऊंगा, but I'll go to the practical understanding of it. पहला चीज, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. हम जो अभी देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट सेक्शन 10 फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई हम कह सकते हैं एक तरीके से एंड पॉइंट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है. लॉ के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है या डिफाइंड नहीं है. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स. Place of supply of goods that is given in section 10 and 11 वो आपको मिल जाएगा, but location of supplier of goods you will not find in the law. And then यहाँ पर जाके कुछ ambiguity है, कुछ questions जो arise होते हैं. But first of all, section 10 subsection 1, ऐसी supply which involves movement, ये वो वाले transaction है जो अब हमने 12(2) पढ़ा था, वेयर हम जब टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे सीजीएसटी एक्ट में, और हम कह रहे थे दो सप्लाई जिसका इनवॉइस बनना है और जहां पर माल का मूवमेंट होना है, चाहे सामने वाले आके कलेक्ट करे या हम मूव करें, उन ट्रांजैक्शंस का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है. सो इट सेज where the location of supplier and of goods and the recipient of location of supplier goods both are not given, but wherever there is a supply which is happening of goods and which involves movement of goods, और चाहे वो मूवमेंट कोई भी कराए, चाहे वो सप्लायर कराए, रिसिपिएंट कराए या कोई तीसरा जना कराए. अभी तीसरा जना कोई भी हो सकता है, ये एजेंट भी हो सकता है, ये ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मे बी थर्ड पार्टी ओनली व्हिच ओनली अंडरटेक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज टू बी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टी होनी चाहिए, चाहे वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, बट इट शुड बी नोन टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो चाहे वो सप्लायर मूवमेंट कराए, चाहे रिसिपिएंट मूवमेंट कराए, या सप्लायर रिसिपिएंट के बिहाफ पे या उनके लिए कोई थर्ड पार्टी मूवमेंट कराए, wherever there is a movement happening, the place of supply shall be, and all these three words are very important. It says location of goods at the time when the movement terminates for delivery to the recipient. Movement जिस समय पर terminate हो रहा है, किस पर्पस के लिए? For the purpose of delivery to the recipient. Just because movement terminate हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं होगा, बट मूवमेंट जब रिसिपिएंट को डिलीवरी के लिए टर्मिनेट हो रहा है, तो जिस समय के ऊपर वो टर्मिनेट हो रहा है उस समय पर गुड्स की क्या लोकेशन है, दैट शैल बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई इन दैट केस. और यहाँ पर एक टिपिकल सवाल उठ के आता है कि एक्स फैक्ट्री सेल्स में क्या होगा, जहां पर मान लीजिए एक ऐसा केस है कि मैं बैठा हूं जयपुर के अंदर, मेरा कस्टमर बैठा है पुणे के अंदर, और पुणे वाले कस्टमर को मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर आओ मेरे प्रीमाइसेस में और माल लेके चले जाओ, आई विल नॉट सेंड द गुड्स टू पुणे. Then in that case where the movement for delivery to the recipient is not terminating in Jaipur, क्योंकि recipient ने तो जयपुर में आके डिलीवरी ले ली और जब recipient ने जयपुर में आके डिलीवरी ले ली, in that case can I not take that view? Answer to that, without getting confused, without thinking too much about this, answer to that lies in one of the definition which is given in the act, that is section 2 subsection 2. section 2 के subsection 2 में address of delivery defined है. What is the address of delivery? Address of delivery means the address of the recipient of goods or services or both indicated on the tax invoice issued by the registered person for delivery of such goods or services or both. मतलब अगर हमने कोई भी टैक्स इनवॉइस बनाया और उसमें हम जो एड्रेस लिख रहे हैं रिसिपिएंट का, और हम कह रहे हैं गुड्स आर डेस्टाइन्ड टू बी बेसिकली रीचिंग टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, तो वो जो एड्रेस है दैट बिकम्स द एड्रेस ऑफ द डिलीवरी. नाउ इंटरेस्टिंगली सेक्शन 10(1) के प्रोविजंस में कहीं पर भी ये एड्रेस ऑफ डिलीवरी कहीं पे भी जिक्र नहीं है, बट जिक्र नहीं होने के बावजूद यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इट
that how will one party identifying that where is that particular place where the goods are terminating for delivery to the recipient, ये पता कैसे चलेगा और हम इसको सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं टैक्स ऑफिसर अपनी गाड़ी लेके साथ चलने वाला है ट्रक के और बोलने वाला अच्छा ये पॉइंट के ऊपर इसने गुड्स की डिलीवरी ली है. हाउ आर वी गोइंग टू सब्सटैंशिएट इट? And that substantiating it would come from the basis of a document. इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको वन ऑफ द प्राइमरी एविडेंसेस मानते हैं, और अगर हम उसको सब्सटैंटिव कर सकते हैं हमारे बाकी कॉरपोरेटिव एविडेंसेस के साथ में, दैट बिकम्स अ कंक्लूसिव प्रूफ. तो अगर हम इनवॉइस पे एड्रेस ऑफ डिलीवरी लिख रहे हैं, माल का मूवमेंट हो रहा है, अब रास्ते में वो रिसिपेंट माल को कहीं से कहीं और लेके चला जाए, अपने स्टेट में लेके जाए नहीं लेके जाए, एटलीस्ट असेसी ने अपनी तरफ से ओनर्स तो डिस्चार्ज कर दिया, एंड दैट एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज बेसिकली दैट प्लेस वेयर द मूवमेंट इज गोइंग टू स्टॉप फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट. एंड हेंस ऑल द एग्जांपल्स व्हिच यू सी हियर, जो आपको अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहे होंगे कि एबीसी जो जयपुर का है उसने एक्सवाईजेड पुणे वाले को माल बेचा है, अगर वो डिलीवरी पुणे जाके करता है तो क्या होगा, अगर वो अपने ट्रांसपोर्टर को बोलता है कि ये माल पुणे में ले जाओ तो क्या होगा, अगर वो अपने फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी करता है और एक्सवाईजेड खुद माल यहां से उठाकर पुणे ले जाता है तो क्या होगा, या फिर एक्सवाईजेड एक ट्रांसपोर्टर को भेजता है और ट्रांसपोर्टर एक्सवाईजेड एबीसी की प्रीमाइसेस में आता है और फिर पुणे लेके जाता है तो क्या होगा. इन ऑल दीज केसेस द आंसर वुड रिमेन सेम. If the address of delivery is that of Pune, it will be leviable to IGST and there is no problem in that. Where is the problem? The problem is when you have a counter sale. मैं आया भोपाल, मैंने आपके यहाँ पर आके लेट्स से I purchase some sweets और मैंने उसको बोला ये मेरा राजस्थान का जीएसटी नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, ये मैं ट्रेन का टिकट है और ये ट्रेन का टिकट के साथ मैं आज वापस जयपुर जाने वाला हूँ, सो इसका आईजीएसटी का इनवॉइस बना दो. देन इन दैट केस इट बिकम्स अ ट्रिकी सिचुएशन. अब अगर मेरे एग्जाम्पल में ट्रेन का टिकट नहीं होता, देन द आंसर वुड हैव बीन सिंपल. यहाँ पर सप्लायर सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता है दैट ये मिठाई का डब्बा एक्चुअली जयपुर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, बिकॉज रिसिपेंट ने अपना ऐसा कोई इंटेंशन जाहिर नहीं किया है. बट जब रिसिपेंट इंटेंशन जाहिर करके बोल रहा है ये ट्रेन का टिकट है और मैं तैयार हूं आपको बताने के लिए कि ये डब्बा वहां जाने वाला है, there is one possibility to say that this transaction can be an IGST transaction. It is far-fetched, it has not been tested, it can be tested further, but आप इसी एग्जाम्पल को मिठाई के डब्बे की जगह मोबाइल फोन से चेंज कर दीजिए, और मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ भोपाल में आके, मैं मेरा जीएसटी नंबर और एड्रेस दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये माल वहां पर जाना है, या तो आप खुद कोरियर कर दो या आपके सामने मैं खुद कोरियर रिसीट लगा देता हूँ, या मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि लेके आई एम गोइंग टू बेसिकली गो टू जयपुर इन दैट केस. सो बिकॉज आई हैव शोन माई इंटेंशन टू द सप्लायर and at the time of preparing the invoice supplier had that particular documentary evidence जिसके बेसिस पे वो कह सकता था कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो है इसमें जो होने वाली रिसिपिएंट को दैट एड्रेस इज गोइंग टू बी राजस्थान. ही कैन टेक अ व्यू बाय सेइंग दैट ऑन दिस काउंटर सेल आल्सो आई एम गोइंग टू चार्ज आईजीएसटी बट नॉट सीजीएसटी एसजीएसटी. आई एम ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स दैट इन दिस रिगार्ड, हालांकि नॉट ऑन दिस क्वेश्चन बट इसके रिस्पेक्ट में ई-वे बिल प्रोसीडिंग्स के अंदर जहां पर गाड़ियों का मूवमेंट, somebody was going to sell the car as an authorized dealer from to another place and where goods were stopped during the course of movement, वहां पर ये सवाल हाई कोर्ट के सामने आया था and high court took a little different view by saying no, all of these transactions cannot be an interstate transaction, but there the facts were a little twisted and the arguments were not placed while reading the provision of address of delivery. So in that light we can see this. Now one question comes up is ये लोकेशन ऑफ सप्लायर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और क्या हम लोकेशन ऑफ सप्लायर रजिस्ट्रेशन के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे या सप्लायर खुद चल के कहीं गया तो वो आइडेंटिफाई करेंगे या किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. अगेन द आंसर टू दैट बेसिकली इट्स थोड़ा सर्कल जैसा है. आप एक चीज को ढूंढने जाते हैं, उसके लिए आपको दूसरी चीज मिलती है और दूसरी चीज आपको पहली चीज पे वापस ले जाती है. कैसे? सेक्शन 22 है सीजीएसटी एक्ट का, वो कहता है आप रजिस्ट्रेशन वहां लोगे फ्रॉम वेयर यू मेक अ टैक्सेबल सप्लाई. अब हमने टैक्सेबल सप्लाई कहां से करी है, यही तो हमें पता करना है लोकेशन ऑफ सप्लायर आइडेंटिफाई करने के लिए. तो पहले हम लोकेशन ऑफ सप्लायर आइडेंटिफाई करेंगे, या हम पहले रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, या हम देखेंगे कि जहां रजिस्ट्रेशन क्या है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर है. ऑल ऑफ दिस बिकम्स लिटिल कंफ्यूजिंग. द आंसर टू दैट, द प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज, पहले तो देयर इज अ सप्लाई. यस, इफ देयर इज अ सप्लाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सप्लायर कहां से सप्लाई करना चाहता है.
And what is the documentary evidence? Contract, invoice, agreement, communication. माल कहां पे पड़ा है? That is the location of goods. That's not the location of the supplier. It may be possible कि location of goods और location of supplier दोनों एक ही जगह पर हो, but there may be possibility कि ऐसा नहीं हो, दोनों अलग अलग जगह के ऊपर हो. जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा वहां पर हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, चाहे माल हो सकता है किसी दूसरे स्टेट के अंदर दूसरी जगह के ऊपर पड़ा हो. एंड इसका टिपिकल एग्जांपल है, ओके, आई कम टू दैट एग्जांपल जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे. जहां पर मान लीजिए माल एक पर्टिकुलर स्टेट में इंपोर्ट हुआ, बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, और मैं बैठा हूं राजस्थान में, माल इंपोर्ट हुआ है और गुजरात में कांडला पोर्ट के ऊपर, और कांडला पोर्ट से डायरेक्टली मैं मेरे कस्टमर को डिलीवरी करा रहा हूं एमपी के अंदर. तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दिस केस? प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्लियर है क्योंकि गुड्स एमपी जाने वाले हैं. What is the location of supplier? That is Rajasthan or Gujarat. Am I required to basically raise invoice from Gujarat? And for doing so, do I have to take a registration in Gujarat? Or can I raise the invoice from Rajasthan only and goods can move to MP? Please don't get confused by or get influenced by कि e-way bill के अंदर bill from ship from दो अलग अलग जगह आती है, तो वो उसका आंसर होगा. Maybe it can be one of those arguments कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे अंडरस्टैंड करा है, but the legal way of understanding is कॉन्ट्रैक्चुअली सप्लायर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर आई एम इंटेंडिंग टू मेक द सप्लाई इररिस्पेक्टिव वेयरएवर माय गुड्स आर, एंड दैट कम्स फ्रॉम द इनवॉइस एंड द एग्रीमेंट. ओके, second example where goods does not involve any movement, in those cases 10(1)(c) provision is very clear, और 10(1)(c) provision बड़ा क्लियरली बोलता है कि अगर मूवमेंट नहीं होने वाला है इन दैट केस, और चाहे वो मूवमेंट ना सप्लायर कराए ना रिसिपेंट कराए, तो गुड्स जहां पर है फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. टिपिकल हम इस एग्जांपल को यूज करते हैं जब हम एसेट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे किसी को बेच रहे हैं. सो देयर इज अ रूम इन विच देयर इज लॉट ऑफ फर्नीचर. I am making two contracts with you, एक सेल ऑफ रूम का विच इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक फर्नीचर का. क्योंकि फर्नीचर का मैं मूवमेंट कराने नहीं वाला और आप यहीं पर इसको यूज करने वाले, सो दैट सप्लाई गेट्स कवर्ड बाय 10(1)(c) in this given case. Then we have this case of bill to ship to transaction. अगेन बिल टू शिप टू सिर्फ एक नाम है, ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन नहीं है, बट हम टिपिकली कॉमन पार्लेंस में इनको बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन समझते हैं. ट्रांजेक्शन क्या है? एक सप्लायर है, एक थर्ड पार्टी है और एक रिसिपिएंट है. ये थर्ड पार्टी रिसिपिएंट सप्लायर जो वर्ड्स है ये सेक्शन 10(1)(b) में लिखे हुए हैं. ओके, हम चाहते तो इसको बेटर वर्ड कर सकते थे, बट जैसा सेक्शन वर्ड है वैसा ही एग्जाम्पल है. थर्ड पार्टी नाम का आदमी सप्लायर के पास में गया, उसने बोला कि मैं आपसे कुछ माल खरीदना चाहता हूं. सप्लायर ने बोला जरूर खरीदिए, बताइए मुझे कहां डिलीवर करना है. थर्ड पार्टी ने बोला माल आप मेरे को मत दो, एक रिसिपेंट नाम का आदमी है जो चाहे उसका एजेंट हो या कोई थर्ड पार्टी हो या कोई और ही इंसान हो, आप उसको जाके ये माल दे दीजिए. तो माल सप्लायर से डायरेक्टली जा रहा है रिसिपेंट के पास में. सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर और थर्ड पार्टी के बीच में है, और थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर माल रिसिपेंट के पास में आ रहा है. दैट्स अ टिपिकल बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन. इस बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 10(1)(b) जो पहला लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो आपको येलो में दिख रहा है, सप्लायर और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, उसका सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करता है. माइंड यू फ्रेंड्स, फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई और ट्रांजैक्शन बिटवीन थर्ड पार्टी एंड रिसिपिएंट, this section 10(1)(b) is not applicable at all. You cannot read 10(1)(b), but you're reading 10(1)(b) only for the first leg of the transaction between supplier and third party. और ये कहता है क्योंकि थर्ड पार्टी माल को कभी रिसीव तो करने वाला है नहीं, माल के अंदर मूवमेंट होने वाला है. यहाँ पर हम डीमिंग फिक्शन से मान लेंगे कि थर्ड पार्टी ने गुड्स को रिसीव कर लिया, और इसके हिसाब से अब लोकेशन ऑफ सप्लायर हमें पता है, प्लेस ऑफ सप्लाई डीमिंग फिक्शन से लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी हो जाएगा, एंड उसके हिसाब से यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर इट इज अ सीजीएसटी, एसजीएसटी और एन आईजीएसटी ट्रांजैक्शन. So that's how I have explained this. Example is, let's say I am sitting in Jaipur, third party sitting in Jodhpur, and third party says to me in Jaipur that directly send the goods to the party sitting in Amritsar. In this case, the first transaction between me and the party sitting in Jodhpur, it will be a CGST SGST transaction because the location of recipient is also is also in Rajasthan, and the location of a supplier in this case is also Rajasthan, and here the location of third party basically becomes the place of supply in this given case. आगे वाला ट्रांजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जोधपुर और अमृतसर के बीच का? द आंसर टू दैट इज, जो आगे वाला ट्रांजेक्शन है, इट कम्स फ्रॉम हियर वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट. In that case,
जहां ना सप्लायर मूवमेंट करा रहा है ना रिसिपिएंट मूवमेंट करा रहा है, तो गुड्स की लोकेशन जो है। तो आप इसी एग्जांपल में देखिए, जो जोधपुर वाला एग्जांपल था, जोधपुर वाली पार्टी सप्लायर है, माल रिसीव करने वाली, अब जो पार्टी इसका नाम रिसिपिएंट है, तो जोधपुर और अमृतसर के बीच में रिसिपिएंट है अमृतसर वाला, सप्लायर है जोधपुर, माल पहुंच रहा है अमृतसर, पर माल का मूवमेंट ना जोधपुर वाला करा रहा है, माल का मूवमेंट ना अमृतसर वाला करा रहा है, माल का मूवमेंट कोई और ही करा रहा है। सो इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ 10(1)(c) where there is no movement involved, but where goods are made available to the recipient। तो जो recipient जो goods की location है जब made available कराए गए, वो कौन सा state है? In this state, in this answer, the state will be Amritsar, and hence it will become an IGST transaction between Jodhpur and Jodhpur and Amritsar। इसी एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, जयपुर में है देने वाला, थर्ड पार्टी है बॉम्बे में और रिसिपिएंट जोधपुर में, और थर्ड पार्टी बोलता है गुड डायरेक्टली जयपुर से जोधपुर ले जाओ। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन एज पर 10(1)(b) इट इज एन IGST ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन एज पर 10(1)(c) इट बिकम्स एन अगेन IGST ट्रांजैक्शन। तो माल राजस्थान से राजस्थान ही जाने वाला है, ई-वे बिल एक बनने वाला है, इनवॉइस दो बनने वाले हैं, but in both cases it will be IGST, all the parties will be able to take credit and there will not be any problem in this case, and it will facilitate the movement. Last, where there is an installation of goods which is happening at a particular site, remember friends, again ये जो installation है हम तब बात करें when there is a supply of goods, we are not talking about supply of services, we are still talking about supply of goods। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, बट कोई ऐसा माल है जो किसी जगह पे जाके फिक्स होना है, इंस्टॉल होने वाला है, इन दैट केस जिस जगह पे जाके वो इंस्टॉल होने वाला है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दोस गुड्स। सो डोंट कंफ्यूज दिस प्रोविजन विद कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लग जाएगा, जो इंस्टॉलेशन की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हम सेक्शन 10 नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हम सेक्शन 12 पढ़ने वाले हैं। एंड जहां पे भी कोई गुड्स ऐसे सप्लाई करेंगे जो किसी बोर्ड या कन्वेंस के ऊपर है, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेन में चिप्स दिया और somebody is basically treating you on an airplane flight, then in that case location on the goods when they were taken on board, जिस समय पर वो पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर गुड्स को डाला गया था, तो वो कौन सा स्टेट था, कौन सी जगह थी, that shall be the location of supply, that shall be the place of supply। In case of export of goods and import of goods, the definition is very clear. It says export of goods means taking goods out of India to a place outside India, and import of goods basically means bringing goods into India from a place outside India. One important thing, friends, which we should know, export of goods always does not mean it is supply of goods. Okay, I'll repeat again. Export of goods always does not mean it is supply of goods. हो सकता है इंडिया के बाहर गुड्स जा रहे हो रिपेयर के लिए भी. In that case, it is not a supply. Once it is not a supply, I don't have to look at provisions of place of supply. I don't have to prepare a tax invoice. I don't have to show that in my GSTR1. But whenever there is a supply which is happening, and that is in the nature of export of goods, then I have to see whether I have to make that supply under LUT या मुझे IGST के अंदर वो पर्टिकुलर सप्लाई करने की जरूरत है. तो ये एक डिफरेंस है जो समझना है. हर एक्सपोर्ट सप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर हर सप्लाई एक्सपोर्ट हो अगर गुड्स इंडिया की बाहर जा रहे हैं, ये चीज जरूरी है. अगर मैं कोई चीज सप्लाई कर रहा हूं और वो गुड्स इंडिया की बाहर जा रहे हैं, इन ऑल दोस केसेस इट विल बी एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इट मे नॉट बी ट्रू फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन अलग है, बट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है इन दिस रिगार्ड. द प्रोविजन इज वेरी क्लियर. अगर हम इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर. चाहे माल गुजरात पोर्ट पर आया और वहां से डायरेक्टली अब मेरे कस्टमर जो एमपी में उसके पास चला गया, डजंट मैटर, इट मेक्स नो डिफरेंस. स्टिल द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट इंपोर्ट विल बी राजस्थान एंड आई विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट, चाहे वो गुड्स डायरेक्टली गुजरात से एमपी क्यों नहीं गए. एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज outside India. Okay, so this we have discussed. Now this was an example which I was discussing कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है गुजरात के अंदर अगर गुड्स डायरेक्टली जा रहे हैं. अगर आप एडवांस रूलिंग देखेंगे इस रिगार्ड में, तो 3 एडवांस रूलिंग है, तीनों ही कहती हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. दो आई अग्री टू व्हाट द अंडरस्टैंडिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द एडवांस रूलिंग. व्हाट आई डोंट अग्री इज दैट ये एडवांस रूलिंग उन स्टेट्स में ली गई थी जहां पर एसएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था. अगर ये एडवांस रूलिंग उन स्टेट्स में ली होती जहां पर एक्चुअली गुड्स थे, probably I understand the answer would have been different of the advanced ruling authority. But when you go from the legal provision of the law, legal provisions are quite clear as to say
or the understanding or the inference which you draw, location of supplier has to come from the document. It should not come from what is the location of the goods in this regard. Last part of the discussion, I'll take for 15-20 minutes more and then we'll close it. That is the location of the supplier of the services or place of supply. Now, unlike location of supplier of goods, यहाँ पर location of supplier of services की detailed definition है. In fact, वो definition अपने आप में बहुत सारी चीजों को explain करती है और बहुत सारी चीजों को बताती है. Okay? So before we go to place of supply, कि सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज देखें. नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इट टॉक्स अबाउट बेसिकली फोर पार्ट्स, वेयर इफ सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड. अगर आपने ऐसी प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई करी जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी. अगर सप्लाई आपने किसी और जगह से करी है अदर देन दैट प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जहां से आपने सप्लाई करी है. और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन में जाए उसके बजाय तीन चीजें हैं जो समझने की. 3 P's. There are 3 P's in the definition of fixed establishment which is important. There should be some permanence, वो जगह के ऊपर परमानेंस होनी चाहिए मेरे एग्जिस्टेंस की. There should be people, कुछ लोग हैं मेरे वहां पे जो बैठे होने चाहिए. They should be able to perform certain activities. And third, obviously, there should be some place, एक जगह होनी जरूरी है. So there should be a place, there should be some permanence at that particular place, and there should be people. अगर ये तीनों चीजें satisfy होती है, तो वो जगह मेरा fixed establishment बन जाता है. And once it becomes my fixed establishment, then in that case I have to see क्या वो supply उस fixed establishment से हुई है. So again, friends, it is important to understand, just because मेरे पास fixed establishment है, that really does not mean कि supply वहां से हुई है. प्रोविजन ऐसे चल रहा है कि पहले हम देखेंगे जहां मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्या, और मैंने सप्लाई वहां से करी है क्या. अगर मैंने सप्लाई वहां से नहीं करी है तो मैं नीचे जाऊंगा. सो आई हैव टू प्रूव इट थ्रू माय डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव नॉट मेड सप्लाई फ्रॉम दैट प्लेस वेयर आई हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन. देन आई विल सी वेदर आई हैव एनी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट. इफ द आंसर इज यस, तब मैं देखूंगा क्या मैंने सप्लाई वहां से करी है. अगर हाँ, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा. अगर नहीं या पार्टली हाँ, तो फिर मैं आगे जाके देखूंगा क्या मैंने सप्लाई एक से ज्यादा जगहों के ऊपर करी है. If the answer is yes, I have made supplies from more than one places, then the place which is most directly connected with the supply. Now again, this is also subjective. ये कानून से निकल के नहीं आ सकता कि location which is directly connected हम कैसे निकालेंगे. It has to come from on the basis of what are the documents which are available with us. और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है और इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, देन द लास्ट इज द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस. इंडिविजुअल के केस में जो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, कंपनी के केस में उसका जो इनकॉर्पोरेशन का एड्रेस है, दैट इज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन दैट रिगार्ड. To take this example, I have an office in Jaipur. I made supply from Jaipur. Place of location of supplier is Jaipur. I have an office in Jaipur and I have a branch office in Udaipur and I have made the supply from Udaipur. And Udaipur is my fixed establishment. मैंने वहां से supply करी है. I have an office in Jaipur. I have a branch office in Surat and I made a supply from Surat. Then yes, Surat is my fixed establishment and I have to take a separate registration for Surat because it is in a separate state. I have 3 offices: Jaipur, Udaipur, Surat. I have made supply from Udaipur और सूरत. तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां से मैंने सप्लाई करी है, दैट इज ईदर उदयपुर और सूरत. और अगर कोई ऑफिस नहीं है तो या तो मेरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है या फिर प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एग्जैक्ट सेम प्रोविजन है जो लोकेशन ऑफ सप्लायर के हैं. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमें सर्विसेज के, गुड्स के केस में ज्यादा काम नहीं आया था, एक्सेप्ट जब हम बिल टू शिप टू वाला ट्रांजेक्शन देख रहे थे, क्योंकि वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के साथ साथ मूव कर रहा था. सर्विसेज के केस में, जो कि सर्विसेज दे आर ऑल इंटेंजिबल, यू कैन नॉट सी देम. दैट इज व्हाई सर्विसेज कहां दी गई उसके लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होल्ड्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. Exact same mirror provisions, and that is why I am not going to detail of it. Okay, typical example which we generally give for this to understand all of this. एक CA firm है, उसको असाइनमेंट मिला है ऑडिट का. लेट्स से उसका एक ब्रांच ऑफिस है दूसरे स्टेट में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो CA फर्म ने जो एंगेजमेंट लेटर साइन कराया वो तो अपने प्रेमाइसेस में बैठ के लेट्स से जयपुर में साइन करा. एक उसका दूसरा ऑफिस है वो बॉम्बे के अंदर है. बॉम्बे वाले ब्रांच ऑफिस से कुछ लोगों ने, वहां के CA ने और आर्टिकल ने जाके काम करा और क्लाइंट को सर्विस डिलीवर करी. इन दैट केस जो क्लाइंट के ऊपर इनवॉइस रेज करना है लेट्स से 10 लाख रुपीस का, वो इनवॉइस कौन रेज करेगा? अब आंसर तो ऐसा लगता है कि द आंसर इज वेरी सिंपल. जयपुर वाला या तो क्लाइंट पे कर दे और बॉम्बे वाला जयपुर वाले पे कर दे, या फिर जयपुर वाला बॉम्बे वाले पे कर दे और बॉम्बे वाला क्लाइंट वाले पे कर दे.
हम ये आंसर इसलिए देते हैं बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंस बाय क्रेडिट का फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं. But friends, when you're reading place of supply, when you're reading location of supplier, you should not be influenced by the credit. Yes, maybe at the end of it, when you will look at credit, you would like to change the answer considering agar bottleneck hai to, but the first answer should come from to which has provided the service. If my client had no idea that my branch office has done anything, if the involvement of branch office was minimal, or if my main office was also involved in supplying the service, तो मेजोरिटी केसेस में द आंसर विच विल कम इट इज जयपुर ने ही काम करा है सारा, ब्रांच ऑफिस ने एक तरीके से हो सकता है सपोर्ट करा हो जयपुर को. बट अगर जयपुर में सिर्फ एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है और बाकी सारा काम मेरे दूसरे ब्रांच ऑफिस ने जाके करा है, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय द ब्रांच ऑफिस, क्लाइंट आल्सो नोज, ब्रांच ऑफिस आल्सो नोज, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय देम, then in that case that fixed establishment has basically supplied the service. So don't go just on the answer कि credit का flow किस तरीके से ensure करेंगे, but all these factual things are important. क्यों बोल रहा हूं मैं ये, जिस दिन डिपार्टमेंट would come and make case of this, ये टैक्स लगना चाहिए था, वो टैक्स लगना चाहिए था, my understanding is these are those cases on which department would like to put their 100% energy. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, स्टेट्स का जो टैक्सेशन है और जो गवर्नमेंट के बीच के जो टैक्सेशन है, दैट कॉम्प्रिहेंसिवली चेंजेस द वे यू बिल इट. अगर जयपुर को इनवॉइस ही नहीं बनाना और सिर्फ बॉम्बे 10 लाख का इनवॉइस बना रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हर केस में महाराष्ट्र रहने वाला है, टैक्स महाराष्ट्र में मिलने वाला है. बट जयपुर वाला ऑफिसर विल ऑलवेज से वेयर इज माय एसएससी, माय एसएससी हैज नॉट टेकन रजिस्ट्रेशन or it has taken registration but not raised any tax. I want to know, I want to ensure that Jaipur wala raises invoice, isliye I want to raise a show cause notice on Jaipur that you have not raised the invoice. Bombay wala officer will say टैक्स तो आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, बट हो सकता है बॉम्बे वाला पे करता तो किसी और तरीके से पे करता. तो पहला तो आई विल लाइक टू रेज अ शो कॉज नोटिस ऑन माय बॉम्बे पर्सन दैट व्हाई हैव यू नॉट रेज्ड द इनवॉइस. So both will have their own set of challenges, own set of understanding. It is very important for us as professionals कि हम जब भी लोकेशन और सप्लायर और सर्विस की बात कर रहे हैं उसका we should have a documentary evidence. And that is why it is always advised in case of services that you should not give any service without a written agreement, maybe a simple one-pager agreement or maybe any simple exchange, but there should be a clear document in that regard. Otherwise, it can create a lot of problem in that place. Take one more example in this regard, जिस पे अभी डिपार्टमेंट ने थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करा है. लेट्स से मैं राजस्थान के अंदर बैठा हूं, मेरे को मेरे कुछ गुड्स है जो चेन्नई वाले बायर को देने हैं. ओके, गुजरात के अंदर एक वेयर हाउस है, लेट्स से अभी चेन्नई वाला बायर बोलता है आई डोंट वांट द डिलीवरी, तो मैंने गुजरात में किसी को बोला ओके एक काम करिए आपके वेयर हाउस में मेरे गुड्स को थोड़े समय के लिए रख लीजिए, जब मैं बोलूंगा तो माल चेन्नई में डिलीवर करा देना. ओके, ही सेड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल डू दैट. And then he will raise an invoice on me for warehousing services. यहाँ तक सब ठीक है. The question is जो warehouse के अंदर goods पड़े हैं, is there any supply which is happening there? और ये जो चेन्नई वाले को सप्लाई करी है ये गुजरात ने करी है या राजस्थान ने करी है. Now this question looks very absurd कि जो गुजरात में बैठा था वो तो वेयर हाउसिंग एजेंट था, वो तो हो सकता है 100 लोगों का और माल रखता हो अपने वेयर हाउस के अंदर, उसका ही सप्लाई ऑफ गुड्स से क्या लेना देना है. That's a very absurd way of understanding this. How department would look at it? Department would look at it on the basis of this definition of place of supply. Oh, sorry, place of business. What is the definition of place of business? Place of business की definition of place from where business is ordinarily carried on and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplying or receive goods or services. वो बहुत आगे वाली अभी हमारे कुछ काम की नहीं है. तो एक वेयर हाउस को भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में लेके जाते हैं. ओके, नाउ वंस यू डू दैट एंड वंस कैन आई से दैट वेयर हाउस बिकम्स माय प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर XYZ का प्लेस ऑफ बिजनेस बनता है तो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन के हिसाब से दिस बिकम्स माय डिस्टिंक्ट पर्सन. और जैसे ही मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन बनता है, राजस्थान से जैसे ही गुड्स गुजरात जाते हैं, आई हैव टू चार्ज टैक्स ऑन दैट, चाहे मैं गुजरात में रजिस्ट्रेशन लूं या नहीं लूं. Now इसका आंसर लाइज इन हाउ आर वी ड्राफ्टिंग द अग्रीमेंट. अगर जो गुजरात के अंदर वेयर हाउस वाला है मैं उसको बोलता हूँ मुझे जगह चाहिए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. मैं गुजरात में जो बैठा हूँ उसको बोलता हूँ मुझे जगह वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ आप गुड्स की कस्टडी अपने पास में लो, यू स्टोर द गुड्स टू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी यू वांट टू डू, लेट मी अलाउ टू इंस्पेक्ट माय गुड्स जब भी मैं देखना चाहूँ, बट आपके ऊपर है कि आप गुड्स को कैसे स्टोर करके रखते हो. मेरे लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वेयर हाउसिंग सर्विस इंपॉर्टेंट है.
In that case, I have not taken the warehouse, I have taken a warehousing service. Once I say I have taken a warehousing service, that place does not becomes my place of business. But once I say I have taken a space where I can store my goods, or I can carry out a warehousing operation, or you carry out warehousing operation on my behalf, there is a problem. तो अग्रीमेंट किस तरीके से लिखा हुआ है सर्विसेज के केस में, दैट विल एक्चुअली लिटरली डिसाइड कि आपने ये जो गुड्स का मूवमेंट करा है इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, फर्दर मूवमेंट पे कौन टैक्स लगाएगा, और ये सर्विस का ट्रांजेक्शन है या गुड्स का ट्रांजेक्शन है. अगेन, just by location of supplier of service or goods, you cannot get influence. The manner you are drafting it would actually determine कि क्या आप उस definition में fall करते हैं या नहीं करते हैं. Okay. In this regard, you may also refer to education guide which was issued in service tax regime, जहाँ पे इन provisions का नाम था place of provision of service rules 2012. और जब एजुकेशन गाइड 2012 में आई थी, जब नेगेटिव लिस्ट आई थी, तब ये सवाल पूछा गया था दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई द एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सप्लाई. और वहां पे भी द आंसर व्हिच वाज गिवन वाज दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपस के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस आपका कैसा है, आपने क्या तरीके की सप्लाईज और सर्विसेज जो एस्टैब्लिशमेंट में आपने रिसीव करी है, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर वो एस्टैब्लिशमेंट का क्या रिलेवेंस है, आप उसको किस तरीके से दिखाते हैं, वहां पर जो स्टाफ बैठा है वो कितना कॉम्पिटेंट है और वो क्या जॉब एग्जीक्यूट कर सकता है. इनफैक्ट दैट इज आल्सो वन ऑफ द रिलेवेंट फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई वेदर यू कैन कॉल इट एज अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और नॉट. So there is no straight jacket formula in this regard. All these facts, all these conditions are very important, and it makes sense that we always go back, look at the agreement, advise the client कि किस तरीके से होना चाहिए. Now coming last to the place of supply provision in this regard, the place of supply provision in respect of services, मैं rather than going into detail कि इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा होता है, I have divided them into 3 separate baskets. और 3 ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस के प्रोविजंस को आइडेंटिफाई करके समझ सकते हैं. एक है जनरल रूल, जो प्योर डेस्टिनेशन बेस्ड रूल है, जो हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, उससे मिलती जुलती जितनी भी प्लेस ऑफ सप्लाईज है, जो ये कहते हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो उसका जो लोकेशन है वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो जो आपके पास अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एड्रेस है उसको मान लिया जाएगा, और अगर वो भी नहीं है आपके पास में तो जो सप्लायर का लोकेशन है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. माइंड यू फ्रेंड्स, अभी हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. अगेन वापस हम लोकेशन ऑफ सप्लायर आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई करने में हमने ये डिस्कस किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है. अब जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, सो अनटिल अनलेस कहीं पर एक्सेप्शन कार्व्ड आउट है जो आप आगे अलग से देखेंगे, जनरल रूल ये कहता है B2B सप्लाई है उसका एड्रेस क्या है आपके पास में, B2C है उसका एड्रेस क्या है आपके पास में, और अगर दोनों ही नहीं है आपके पास में तो आपका खुद का एड्रेस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. जनरल रूल के अंदर तीनों चीजों में फायदा मिलता है. आप अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यू गेट ऑल एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, एक्सपोर्ट में भी कवर होता है. क्रेडिट पास ऑन करना है, क्रेडिट पास ऑन होता है. और सिमिलरली अगर कोई फॉरेन वेंडर इंडिया के बाहर है और ये सर्विसेज जनरल सर्विसेज है नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शन, देन यू हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इंपोर्टर सर्विसेज एंड यू कैन टेक क्रेडिट. ऑन द अदर साइड वाइस वर्सा, कुछ सर्विसेज ऐसी है जहां पर देयर इज अ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कि वो सर्विस कहां पर परफॉर्म करी गई है, दैट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आपका रिसिपिएंट कहां का है, एक्सपोर्ट है नहीं है, क्या एड्रेस है, ऑल ऑफ दैट इज इररिलेवेंट. दैट परफॉर्मेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेयरएवर इट डजंट परफॉर्म दैट बिकम्स अ प्लेस ऑफ सप्लाई. यहां पर यू विल ऑलवेज हैव अ चैलेंज, क्रेडिट पास ऑन भी नहीं होती है, आप एक्सपोर्ट भी प्रूव नहीं कर सकते, बट एक बेनिफिट ये होता है कि फिर इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, बिकॉज अकॉर्डिंगली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाता है. एंड लास्ट इज हाइब्रिड. हाइब्रिड ये है कि अगर B2B को सप्लाई करिए कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज, तो B2B है तो तब तो उसका एड्रेस आपके पास ऑन रिकॉर्ड क्या है, दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट अगर B2C को दी गई है वो सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को, तो जहां पर परफॉर्म करी गई है दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो ये हाइब्रिड वाली वैसी है जहां पर गवर्नमेंट से साइड कुछ चीजों में तो क्रेडिट पास ऑन करना जरूरी है and they are required for the business, but whenever they are taken by non-business entities which are not registered, then the place of performance of them that becomes very important. To take you through the example of it, what is the examples of it? Hybrid is on the left hand side, source wala is on the right hand side.
लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज, अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को ट्रेनिंग परफॉर्मेंस सर्विस दे रहे हैं, देन इन दैट केस जहां पर ट्रेनिंग दी गई है दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर किसी रजिस्टर्ड आदमी को दे रहे हैं तो चाहे ट्रेनिंग में जयपुर में बैठ के दूं, अगर उसका एड्रेस चेन्नई का है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी दैट ऑफ चेन्नई। बट आई हैव टू डिफरेंशिएट। अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग परफॉर्मेंस राइट हैंड साइड पे टॉप पे लिखा है, और सोर्स प्रिंसिपल के अंदर 1 2 3 थर्ड वाली रो के अंदर यू सी रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग। एंड नाउ द क्वेश्चन वुड कम अप फॉर डिबेट ऑलवेज इज व्हाट इज अ ट्रेनिंग एंड व्हाट इज अ पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस। मैंने एमबीए के स्टूडेंट्स को पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में लेक्चर दिया, उनको डिसिप्लिन के बारे में बताया, वेदर दैट इज पर्सनल ग्रूमिंग और ट्रेनिंग। Now for that you have to go back, you have to search for understanding ट्रेनिंग क्या होता है, क्या ट्रेनिंग के अंदर एग्जाम होना जरूरी है, इट हैज टू बी सिस्टमैटिक एजुकेशन और नॉट, और ग्रूमिंग क्या है, कैन ग्रूमिंग बी अ हॉबी और नॉट। I think that will be a differentiating factor to identify what will be the place of supply. Similarly, organizing of event and ancillary activities, और उस event के लिए sponsorship रजिस्टर्ड को है तो उसका एड्रेस, अनरजिस्टर्ड को है तो जहां पर इवेंट हो रहा है। बट अगर इवेंट का कोई टिकट है, लाइक फॉर एग्जांपल सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन टू एन इवेंट, राइट हैंड साइड फोर्थ, अगर कोई इवेंट का एडमिशन का टिकट है तो चाहे वो रजिस्टर्ड को दो या अनरजिस्टर्ड को दो, जहां पर इवेंट हो रहा है दैट बिकम्स प्लेस ऑफ सप्लाई। पर आपने मुझे काम दिया कि वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है एंड आई बिकम द इवेंट मैनेजमेंट एंटिटी, देन इन दैट केस अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपका स्टेट जो है दैट बिकम्स अ प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे इवेंट में किसी तीसरे स्टेट में जाके क्यों नहीं करा रहा। ओके, सो this is how it has been done. For example, in case of immovable property, all of us know, आपने किसी दूसरे स्टेट में जाके प्रॉपर्टी रेंट पर ले लिया, उसके अंदर वो हमेशा अपने स्टेट के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करेगा एंड यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इट इफ यू आर सिटिंग इन सम अनदर स्टेट। ओके, same applies for works contract services, same applies for hotel accommodation services, मतलब वो सारी सर्विसेज जो immovable property के रिलेशन में है। In that case we cannot argue that, but what we can argue is whether I can really say that some of the activities are in relation to an immovable property or not। अगर कोई एक्टिविटी किसी होटल में होनी है, क्या वो जरूरी है कि वो एक्टिविटी इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और दैट एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट क्वेश्चन इज समथिंग वेयर आवर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड डिस्क्रिशन कम्स इन, अदरवाइज प्रोविजन इन दिस रिगार्ड इज क्वाइट क्लियर इफ आई मे एक्सप्लेन सो। वन क्वेश्चन विच जनरली कम्स अप, मैं बैठा हूं भोपाल में, मेरी प्रॉपर्टी है लेट्स से राजस्थान के अंदर, और वो प्रॉपर्टी आपने मुझे यश डड्डा को किराए पर दे रखी है, व्हाट टैक्स आई शुड चार्ज। ओके, अगेन 90% पीपल से सीजीएसटी एसजीएसटी। इसमें इतना सवाल क्यों है, क्योंकि आप ही ने बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान, इररिस्पेक्टिव यश डड्डा चाहे राजस्थान में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो। नाउ फ्रेंड्स, आंसरिंग दैट प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान और टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो हमको पहले आइडेंटिफाई करना था, सबसे पहले यू हैव टू आंसर टू दैट। You are sitting in Bhopal, you have nobody except your property in Rajasthan. Are you compulsorily required to take the registration? The answer is, from what is the place of business from which you have supplied the service? Is it Rajasthan or is it Jaipur? Oh sorry, is it Rajasthan or MP? Again, if somebody says it is Rajasthan, my question will be, क्या आपने तीनों पीस को satisfy किया है? Do you have a place in Rajasthan? Yes, you have a place. Do you have permanence in Rajasthan? Yes, you have permanence in Rajasthan. Do you have people in Rajasthan? The answer is no. You do not have people in Rajasthan. And once you don't have people in Rajasthan, it cannot be a fixed establishment. Once it is not your fixed establishment is always in Bhopal, and hence your location of supplier is Bhopal, but place of supply will be Rajasthan. You will charge IGST. चाहे यश डड्डा अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको महाराष्ट्र का भी दे दे, दैट विल नॉट मैटर, यू विल चार्ज आईजीएसटी, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन देयर। So that is how we have to interpret it in this regard. I think I have tried to summarize this in terms of that how can we look at three things: general, hybrid or source. In case of general, credit will always flow, it will always be on the B2B अगर उसका एड्रेस क्या है। Hybrid, if it is B2B, credit will flow. If it is B2C, the place where the performance is done. And source based, all those things where they do not care where it is B2B, B2C, but where the performance is happening, that will be that particular place. Before I come to an end, one thing, that is section 13. अभी हमने section 12 के बारे में बात करा,
सेक्शन 13 है जब वो बोलता है कि आपको सेक्शन 13 तब पढ़ने की जरूरत है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई में से सॉरी रिसिपिएंट और सप्लायर में से कोई एक जना इंडिया के बाहर है और एक जना इंडिया में है। और आपको सेक्शन 12 तब पढ़ने की जरूरत है जब दोनों इंडिया के अंदर है, बोथ आर इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, 13 के अंदर एक प्रोविजन है, द कॉन्सेप्ट इज सेम, दैट इज सोर्स, हाइब्रिड एंड जनरल, द कॉन्सेप्ट इज सेम। Only one thing which is very important and relevant there is the intermediary services. इंटरमीडिएरी सर्विसेज के केस में ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा है जहां पर either of the supplier or the recipient is outside India and there is a provision of an intermediary services, the question which comes up is that what is the place of supply, and the answer is location of supplier will be the place of supply. The question is what is an intermediary service? और intermediary की definition कहती है intermediary means a broker, agent or any other person by whatever name called who arranges or facilitates the supply of goods or services of both or securities between two or more persons but does not include a person who supplies goods or services of both on his own account. अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन बड़ी ह्यूज है। ये कहती है अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है और ये काम में मैंने खुद की कैपेसिटी में नहीं किया बट आपके बिहाफ पे करा है, चाहे वो अरेंजमेंट का काम हो या फैसिलिटेशन का काम हो, आपकी सप्लाई को मैंने अगर किसी दूसरे आदमी को फैसिलिटेट कराया या अरेंज कराया है, देन इन दैट केस मैं आपसे जो भी मेरा मेहनताना चार्ज कर रहा हूँ in the form of commission or otherwise, it will always be treated as a supply of an intermediary service. और अगर ये पैसा मुझे फॉरेन करेंसी के अंदर भी मिल रहा है, still does not matter, it will not be an export of services because the place of supply will always be in taxable territory. Now friends, intermediary वाला concept जो है that is very relevant. It has a lot of issues. If your client is a commission agent sitting in India, he will not be able to take any export benefit. He has to charge IGST और उस IGST का क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगा. बट वाइस वर्सा, योर क्लाइंट इज एन एक्सपोर्टर और वो इंडिया के बाहर किसी आदमी को सेल्स कमीशन का पेमेंट करता है, तो चाहे उसका बेनिफिट उसको इंडिया में हो रहा हो, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएरी प्रोविजन ही वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स एंड द रिवर्स चार्ज बिकॉज उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दैट रिगार्ड इज आउटसाइड इंडिया. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है, माल इंडिया से बाहर जाना चाहिए. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ऐसा बिल्कुल नहीं है. पांचों कंडीशंस है, पांचों की पांचों को आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है. वन ऑफ द कंडीशंस इज दैट यू शुड रिसीव फॉरेन करेंसी इन इंडिया. In convertible foreign exchange, you should receive the consideration. If consideration is not coming in convertible foreign exchange, even if all other conditions are satisfied, it is not an export of service. तो अगर पैसा इंडियन रुपीज में आ रहा है या इंडिया में पहली बार इंडियन रुपीज के अंदर हिट कर रहा है इंडिया को, और अगर आप FIRC बैंक से नहीं ले सकते हैं, then it will not be treated as export of service and you would be required to pay tax in that regard. So finally, whenever I end, I know I had to rush at the end because I have overshot my time by 13-14 minutes, but I see there are some questions also. I always end like this, that whenever you're interpreting laws, it is always fun, very interesting. And how it is that interesting is like, अगर मैं आपको ये interpret करने को बोलूँ कि आपको अपनी screen पे क्या दिख रहा है, the answer can be it is like 13 or B. If you say it is B and I write it like this, your answer will change. If you say this is 13 and I write it like this, your answer will change. Exactly is the any other provision in the law. आप आगे पीछे का क्या context के साथ में चीज बोल रहे हैं, that is relevant. If you are through with your context, I don't think any of us will have any problem. But yes, today department when they are raising questions, rather than looking at what we are trying to interpret, उसके आगे पीछे वाली story is very important. Thank you so much all of you for a patient hearing. If there are any questions, I'll be happy to take those questions. Thank you. Thank you, Yash, for such a wonderful deliberation. I hope members may have benefited from your deliberation. Thank you very much. Now I would request the participant to raise the queries because in chat box the queries has been lost due to members putting up their membership number. A query which I can see is, what is place of supply for freight forwarder recipient is outside India? So if recipient is outside India and goods are going from India to outside India and freight forwarding company is in India, then in that case it is section 13, not section 12. और section 13 कहता है destination of goods,
because destination of goods is outside India, it is eligible for treating it as an export of services. प्रॉब्लम तब है जब एक्सपोर्टर इंडिया के अंदर है, माल इंडिया के बाहर जाना है, फ्रेट फॉरवर्डर इंडिया के अंदर बैठा है, वहां पर सेक्शन 12 के अंदर अमेंडमेंट है जो ये कहता है कि इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगा. ये अमेंडमेंट अच्छे इंटेंशन के साथ आया था, बट इसका इम्प्लीकेशन ये हो रहा है, for all the goods which are now being exported from India, their freight, it is leviable to IGST. Place of supply will not be your state, and tomorrow department will say that they don't want to give the credit. Members, any other queries they can raise? One query, can I read that query, sir? Yeah, sure. Another query is, suppose I have a consultancy firm which has a GSTIN registered in MP and Delhi. I am having HO in MP and branch in Delhi. I am providing services relating to immovable property in whole of the India. But in 17, 18, 18, 19, I have made all the invoices on MP. Will there be? Achha, I think I have answered this question in regarding of renting of immovable property. आपको रजिस्ट्रेशन वहां लेने की जरूरत नहीं है जहां प्रॉपर्टी है, आपको देखना है कि आप उसको अपना फिक्स एस्टैब्लिशमेंट क्वालिफाई करा सकते हैं. अगर नहीं, you can very well make invoice from MP. In fact, the best advice in this case is whenever you are entering into a rent agreement, अपना जो एड्रेस आपको लिखना है वो अपने स्टेट का लिखिए जहां पर आप रजिस्टर्ड हैं. That is one of the conclusive evidences to say that you have supplied your service from your state. चाहे प्रॉपर्टी आपकी दूसरी स्टेट के अंदर हो, that doesn't matter. But if your rent agreement has your address of another state, then there is a problem. It is advised those rent agreements should be changed. Next query is, what will be place of supply in case of RCM, especially in GTA cases? Again, sir, the concept is simple. Location of supplier, place of supply. आपको बस टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो उस पे बाद में आएगा. लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर लेट से गुजरात का है. माल कहां पर आने वाला है? माल आपके पास भोपाल में आने वाला है. सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 कहता है ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर, देन लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. तो आप तो रजिस्टर्ड है, जो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने वाले हैं, आपका स्टेट हो गया भोपाल. सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज भोपाल. लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्योंकि ट्रांसपोर्टर गुजरात का है, इट बिकम्स आईजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई. यू हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज आईजीएसटी, वेयर यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट. Okay. Next query is, GST registration is in Madhya Pradesh and labor supply work contract service supply to Maharashtra and charging IGST from MP. Is Right. it okay, or registration has to be taken in Maharashtra? Three things. Do you have a place in Maharashtra? आपके लेबर कहाँ पर रिजाइड करता है वो प्लेस नहीं. Do you have a business office in Maharashtra? You have to answer. क्या वो ऑफिस जब तक है, जब तक ये काम होने वाला है, या कुछ टेम्पररी पर्पस के लिए ही है? दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड, वहां पे वो लेबर के अलावा कोई और भी आदमी है जो वहां पे उनका रोज का हिसाब रखता है. इज देयर समबडी कीपिंग एन अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दैट? क्या चिट्ठी है जो आपके नाम से वहां पर जा सकती है? ये चारों के आंसर अगर हाँ है, then yes, it looks like that you have a fixed place of business there. If चारों में से किसी भी एक का आंसर ना है, it looks like you don't have a fixed place of business there and you can do a billing very well from here. There is no problem. What will be place of supply if any refreshments are provided on board on chargeable basis by an international airline when it is not in Indian territory? Right. तो वो जो माल चढ़ा था ना, वो कहाँ पर चढ़ा था, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे चढ़ा था, इट इज लेविएबल टू टैक्स, जिसने भी सप्लाई करा था. अब वो इंटरनेशनल एयरलाइन अगर इंडिया के बाहर की है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, लेवी वुड फेल because the international airline is not supposed to take registration in India and hence it will not charge any tax. But if it has taken a registration in India and then it has made the purchase and then it has supplied, तो जिस state में चढ़ा था, that becomes the place of supply in that case. PEB works contract advance is not reported in R1 and work contract delayed due to COVID for 6 months. What is point of taxation in this particular case? Specifically due to COVID, तो COVID में देखिए earlier there was that dispute था कि उसका relaxation है या नहीं है time of supply के provision में. Ultimately, my understanding was there was no relaxation in time of supply provisions. You had to basically raise the invoice जो आपका 31(5) के हिसाब से आता था.
अगर आप कह रहे हैं कि पीवी डिले हुआ था, उसका क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? If yes, you have a documentary evidence where both the parties said yes, we will do the PV at a later point of time, और आपका पेमेंट आपकी PV से लिंक था, then yes, the completion of event has not happened. जब भी PV हुआ है उसके 30 days में अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं, that is your time of supply in that case. Ankur, do you have any queries in your end? No, I did not get any queries specifically. Actually, one question is there: IT services provided outside India and remittance of same also received in bank account outside India. Is it covered under export of services? Amount partly transferred Indian bank account after 3-4 months on fund requirement basis. Now, very interesting thing. पहले तो provided outside India means was it provided my branch office or a site office outside India? If that has happened, तो ये एक तरीके का global agreement है जो हुआ तो इंडिया के साथ में है, but मेरा branch office जो इंडिया के बाहर है, they have executed that particular work. If that has happened or the agreement has been with them, तो पहला, is there any nexus which my Indian office has? If my Indian office has no nexus except that the agreement was entered with me, according to me, it is supplier not liable to tax under GST at all in India. But if some back support function has been provided, then the question to that regard would be who was ultimately liable for delivery of service to the customer. अगर कस्टमर को था कि उनको तो सिर्फ जयपुर इंडिया ऑफिस के साथ में कम्युनिकेट करना है, यूएस ऑफिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर देम, then yes, it can be an export of service subject to the amount comes in convertible foreign exchange, maybe on requirement basis. But they were only communicating with the office outside India, just an invoice was raised from here, then in that case, according to me, it is not liable to tax at all. You may refer to judgment of Infosys and Mahindra in this regard. Both of these judgments are exactly on the same issue. I think Yash, आपके पास और कोई query है? I've got 2 queries. It's in this only. If you can, someone you can read it from the chat box only. Name, क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा सा वो membership number और वो सब भी आ रहा है ना. What will be the place of supply in case of blasting services provided to road contractor registered in other state? ये एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अगर क्वेश्चन सही समझाऊं फिर भी बता दूं, आपका सवाल ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है या नहीं है. अनफॉर्चुनेटली टू माय अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. हालांकि इसके ऊपर एक जजमेंट है भारत पेट्रोप्लास्ट का और एक केदार हट करके एडवांस रूलिंग है जो कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है. माय अंडरस्टैंडिंग इज लिटिल डिफरेंट. तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तब तो आप यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ रोड, जो रोड की रेट एप्लीकेबल है आप उसमें जा सकते हैं. अदरवाइज इट लुक्स लाइक इट विल बी टैक्सेबल एट 18% ओनली. Then one more question: in case of company in Delhi having branch office in MP is moving goods from its office to different places where such goods will be distributed to its dealer as incentive gifts. Please put some light on with respect to time, place of supply. Now टाइम प्लेस सप्लाई बाद में आता है सर. आई थिंक पहले आता है आपने अपने डीलर्स को जो इंसेंटिव के तौर पे गिफ्ट्स दिए हैं, क्या वो अपने आप में सप्लाई है भी या नहीं, क्या उसके अंदर सेक्शन 7 के इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, इज देयर अ कंसिडरेशन, इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज देयर. इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन दैट केस, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हैपनिंग. तो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बाद में आता है. अगर आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ये सप्लाई है और वो हमारा सवाल नहीं है, then answer is very simple. Then it has to be supply of goods. If it is supply of goods, आप जिस दिन अपने premises से माल निकाल रहे हैं, that at that time you have to pay tax. और जो आपका डीलर का place है, that becomes your place of supply in that case. In your yes sir. A is having a registered office in India. He is developing educational sources by himself and selling it to international customers through PayPal portal. Whether this amount is export, amount is received in foreign currency. Okay, he has an educational portal. क्या है सर, एक बार वापस बोलिएगा. I have got the question. A is having registered in India, is developing educational sources by himself and selling it to international customers through PayPal. Now I don't know developing what is educational sources is. There must be courses. It must be courses. Okay. Sorry. एजुकेशनल कोर्सेज. अब देखिए अगर एजुकेशनल कोर्स है, अगर वो ऑनलाइन डिलीवर करने वाला है, आप इसको सिर्फ ट्रेनिंग सर्विस के तौर पे मत देखिए, आप ये भी देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट इज ये ऑनलाइन ट्रेनिंग जो आजकल शुरू हुआ उसमें एक नया एंगल है. आपने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि मेरे को एक लेक्चर देना है.
आपने मुझे इसलिए रखा है, मैं लेक्चर दूंगा, आप मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करोगे, फिर आप अपने नाम से उसकी ब्रांडिंग करके बेचोगे. इन दैट केस आई एम नॉट ओनली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सर्विस, मैं मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका मैं खुद कॉपीराइट करा सकता हूँ वो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ. नाउ वेदर इट इज अ परमानेंट ट्रांसफर और अ टेम्पररी ट्रांसफर, वो डिसाइड करेगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है. अगर क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुझे लेक्चर देना है यहाँ बैठ के और बाहर लोग सुनने वाले हैं और उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, बाकी ये सब और कोई एलिमेंट नहीं है, then in that case it is a training service which has been done. If it is a training service which has been done, then the place of performance of that service, ये provision section 13 में applicable नहीं है ट्रेनिंग के लिए. वहां पे I can very well say it is an export of service which has happened subject to the amount is received in foreign currency. Is GST applicable to derivative transaction? I would not like to answer to that because that's not my area of topic, but still my prima facie answer is no. If I am supplying a supplier of goods registered in MP, my recipient is in Maharashtra, but on his instruction I am delivering the goods in MP only. I am making bill to Maharashtra, ship to MP, whether IGST. It is IGST transaction, same which I showed in my PPT. Partnership firm under service tax, all service provided to government as road work and paid freight for bitumen purchase. Department issued letter for payment of RCM on this freight is payable or exempt. अगर आप सर्विस टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यस, you would be required to pay tax under RCM. GST regime की बात कर रहे हैं, you can litigate this subject to, but no, sorry, you can't litigate this because GST में road is taxable. So in both those cases, it will be taxable, sir. This is the last question which I had in my chat. I think now we should conclude the program because the queries are unlimited and time is a constraint. तो दोनों पार्टनर्स में स्प्लिट करेंगे. Ankur, now I would like to request Ankur Jain, Vice Chairman Bhopal branch, to provide his vote of thanks. Thank you, Samant. I hope I'm audible. Yes. On behalf of the entire managing committee of Bhopal branch, CA Samant Mohabbe, Secretary, and CA Anshul Agarwal, sir, Chairman of Bhopal branch, I would like to express our heartfelt gratitude to CA Yash Taddaji for sparing time, for guiding us and teaching us in this series of lectures that we have planned over this week. And I'm sure that you have actually covered the entire topic in a very detailed manner. And I'm sure that all the participants have benefited tremendously from your deliberation. And I really would like to express my thanks to all the participants who have come forward and have helped us in making this a very successful deliberation. Thank you. I would like to inform you that tomorrow we will be having a deliberation from CA Navneet Garg, and I'm looking forward to see all of you there. Thank you. Thank you, SJ. Thank you so much. Thank you so much, sir. I'll share the presentation. Thank you. Yashji, you share it on my WhatsApp number? Yeah, I'll do it on your WhatsApp, sir. You can also share it over here. I think we can download. All the members can download straight away. You can attach it on the chat box. Just one. After it is sent to the chat box, you can end the meeting after a while so that everybody can download. You can stop the recording right now.